Hello everyone. Good evening. I hope all are doing good. 2 दिन के बाद finally we are going to meet and start our class. Voice audible ना? Voice audible? Okay. So हुलिया बड़ा भरा हुआ है. Navratri is going on and 2 days it 2 days it took to adjust according to the होता है ना. In the morning you are eating fruits. In the evening you are having some fruits and like juices and all. Whole day nothing like that. So 2 days it is required for adjustment now. Next 6 days, 7 days more. So it's okay. Prayer is prayer. Dedication is dedication. I'm doing it, I think, past from almost 12, 13 years. So that is it. Okay. So today, in the evening, we have a very important live trading group meeting. All those who are doing live trading, exactly. Those who are not doing live trading, you don't need to attend that. And those people who are not doing live trading from past 1 week, we will remove them from next week because live trading आप नहीं कर रहे तो आपका उस ग्रुप में होने का कोई मतलब नहीं है. Okay, so we have a very important meeting in that group. Weekly analysis and all. We will discuss everything there. And regarding this, now till the time Navratras are going on, we will have the classes in the evening. ठीक है तो कल भी same time we will connect, and from Monday onwards we will connect on same time. Okay, attendance compulsion is not required. Recording will be there till the time Navratras are there. Please bear with me. We will complete it because in the evening at 7:30 I feel like energyless. ठीक है, I feel like energyless. Those who are doing paper trading is fine. Those who are just there to look and watch and enjoy the group in the live trading, that is not good here. If you're not serious, please, it is not required to be you to be there. Okay, just to hang in there, you have admitted yourself in live trading group, then it is not good, please. Okay, so this is it. Okay, and many things are there. We will have to discuss it. And आज थोड़े मोड़े कुछ topics हैं जिसको we will discuss. And after that, tomorrow we will have our discussion class. The same time we will discuss like 1 hour, 1 hour 30 minutes, 2 hours. We will have the discussion together. We will discuss whatever the doubts you have, whatever the things you have in mind. How is your training class? How is your understanding going on? Now we are moving towards the advanced level. How you are going to adjust according to that? What about your future? What about the things? So many things are there. Whatever the questions we have, one to one, we will talk and we will. I will try to answer each and every doubt of yours. Okay. So today, bear with me. We will complete the class. Last topic is there. I think we were on butterfly strategy. We will complete that. That is a big topic. Two topics are there in that. Then some risk management talks. Not risk management like we have been always talking. Apart from that, risk management, we will have to talk on facts and factual things. That what are the things that you need to require to take care of. आपको क्या चीजें ऐसी हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में आपको काम आएंगी. ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ओके, चलिए. Be available in the evening. It's going to be a very defining and life-changing moment for you. I've already updated each and everything, and I all those who have their experiences, you all need to come with your experiences, ideas, and foolproof plans and everything. We will discuss everything there. That's why I have kept the meeting in the evening at 10, so that everyone is available. No one can tell that I'm in job and everything like that. Okay, so please come. It is really going to be next big step for us. Okay, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, एंड कल इसी टाइम पे, कल क्लास नहीं रखेंगे, कल डिस्कशन होगी. ठीक है, तो डिस्कशन में संडे इज देयर, मोस्टली ऑल विल बी अवेलेबल. तो संडे बैठ के हम लोग सारी चीजों को डिसाइड करेंगे. बाकी मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बता दिया है. इन दिस मंथ वी आर गोइंग टू रिलीज 2 स्टाइपेंड्स, एंड उसके लिए जो फॉर्म आना है स्टाइपेंड के, अगर अकाउंट वगैरह आपको चेंज करना है या कुछ डालना है तो मंडे वो फॉर्म आ जाएगा, उसको भर दीजिएगा. ठीक है, 10 to 15 वाले में फर्स्ट स्टाइपेंड चला जाएगा आपका, और 25 to 30 वाले में सेकंड स्टाइपेंड, ताकि आपका नवरात्रा भी बन जाए और ताकि आपकी दिवाली भी बन जाए. दिवाली स्वीट्स मैंने बोला है सभी लोगों को, मैं अपनी तरफ से 3-3 हजार रुपए के स्वीट्स के कूपन्स, मतलब एज एन अमाउंट ही मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देर इज अ स्मॉल गिव अवे. मैंने बोला है जो जो लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में सीरियसली लाइव ट्रेड कर रहे हैं, आई विल डू अ गिव अवे. मिनिमम अमाउंट आई हैव फिक्स्ड 25,000, तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा ट्रेडिंग के लिए.
बट आई एम ट्राइंग कि और बड़ा प्रॉफिट हो जाए, 25,000 मतलब 50,000 हो जाए, तो मैं सभी लोगों को 50,000 50,000 रुपए भेज दूं अपनी तरफ से कि सब लोग बैठ के आराम से लाइव ट्रेड कर पाए वहां पे। ठीक है, बाकी आप लोग प्रे कीजिए, अल्लाह, माता रानी, गॉड, एनीवेयर वेर एवर यू बिलीव, that I get good profits in gold and Bitcoin for next 20-25 days, then I will do a very good big away। मेरे लिए मैंने ये डेडिकेट किया, मेरे लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में जो लोग सीरियस हैं, जो लोग सीरियसली मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं उनके साथ पूरी जिंदगी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, कुछ नहीं। वी विल प्लान एवरीथिंग आउट, वी विल डू अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, बस मेरी नीयत अच्छी है, आपकी भी नीयत अच्छी रहनी चाहिए। और मैंने ये फिक्स किया हुआ है कि अगर मेरे सारे ये चीजें कंप्लीट होने के बाद, सारी चीजें हो जाने के बाद, अगर मुझे महीने के 1 करोड़ रुपए अगर बिटकॉइन से आ जाते हैं, इट इज वेरी इजी टू अर्न देयर। अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है, योर मोमेंट्स आर गुड, तो आप एक दिन में 10-15 हजार डॉलर से 100,000 200,000 US डॉलर आराम से बना सकते हो। ठीक है, आई हैव सीन इट, आई हैव मेड इट ऑल्सो। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी देयर। तो बस मेरा टारगेट यही रहेगा, हर महीने 1-1.5 लाख US डॉलर बनाऊं और अपने लोगों में बांटूं। ठीक है, इट इज लाइक दैट, मैं यही कोशिश करूंगा हर बार। ठीक है, चलिए। तो फिर से अभी हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर इवनिंग में वी हैव अ डिस्कशन, वी विल डिस्कस देयर। एंड जो भी हम लोग हैं, जो 100 की कम्युनिटी बनी हुई है हमारी, 140 लोग हैं अभी, इसमें से भी 30-40 लोग अप एंड डाउन है, इनको भी धीरे धीरे वी विल शिफ्ट इट आउट। एंड 100 पीपल, मेरा एक वो है कि वी 100 ओके, वी 100, ठीक है, वी 100 विल बी टुगेदर फॉर एंटायर ड्यूरेशन। मेरा 100 का टारगेट है। अब ऊपर अगर 140 है तो, बट देखते हैं, दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फिगर है, बस 100, है ना, लाइक दैट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गो। और धीरे धीरे मैंने बोला है आप लोगों को, फ्रॉम नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स आई विल स्विच यू ऑल। इंडियन मार्केट में तो आप काम करेंगे ही, एंड आफ्टर दैट यू विल वर्क इन दी फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट ऑल्सो, बिकॉज दैट थिंग इज लाइक नेक्स्ट बिग थिंग, इट इज रियली नेक्स्ट बिग थिंग। और वर्ल्ड लेवल पे जो भी चीजें हो रही हैं, दिस इज रियली गोइंग टू ट्रिगर अ वेरी हैवोक, बहुत बड़ा हैवोक क्रिएट होने वाला। बस हम टाइम बॉम्ब पे, टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। ठीक है, लाइक so many things are happening at this moment of time: Middle East, oil, gold, and American election. Many things are there. Okay, so अगर थोड़ा सा भी मिडिल ईस्ट में वॉर स्केलेट अप होता है, देन इट इज रियली गोइंग टू चेंज द इंटायर सिनेरियो इन इन अ नाइट। एक ही रात में सारे सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वी हैव टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट बिग थिंग्स आर कमिंग रियली फास्ट, है ना, और जब सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, इट इज रियली गोइंग टू बी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ठीक है, चलिए, ज्यादा बोलता ज्यादा बोलूंगा नहीं। वी स्टार्ट आवर क्लास एंड अगेन वी विल एंड इट एट 6:30। उसके बाद आई हैव सम प्रेयर एंड आरती वगैरह, एंड इन द इवनिंग अगेन एट 10 वी विल मीट। ओके, चलिए। चलिए, प्लीज, आई एम क्लोजिंग द चैट बॉक्स एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। स्क्रीन नजर आ रही है सभी लोगों को? स्क्रीन विजिबल ना? ओके, ठीक है, चलिए। चलिए, विल स्टार्ट, है ना? ओके, थैंक यू। जैसे मैं आप लोगों के बीच में प्रॉफिट गिव अवे कर रहा हूं, ताकि आपका कैपिटल बड़ा हो, हर महीने के एंड में मेरा एक टारगेट होगा, 50 लाख 1 करोड़ जो भी आए, मैं 100 120 130 लोग जो भी हैं उसमें बांट सकूं। वैसे ही आपका भी टारगेट होगा कि आप भी जो भी प्रॉफिट करेंगे एडिशनल, ठीक है, वो आप भी गिव अवे करेंगे। हम लोगों में गिव अवे नहीं करेंगे, कहीं अच्छी जगह, जरूरत की जगह पे उसको गिव अवे करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी प्रॉफिट, सब कुछ सरप्लस करने के बाद, क्योंकि आप जितना देंगे उतना ही आपके पास आता जाएगा, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, आप जितना बचाएंगे उतना ही सब कुछ आपसे दूर जाता जाएगा, और आप जितना देंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप देंगे वो उतना ही आपके पास, उससे ज्यादा आपके पास वापस आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप अभी 1 लाख से ट्रेड करते हैं, आपके सपोज किसी मंथ में 50-60 हजार का प्रॉफिट हो गया, तो आपका टारगेट उस मंथ में मान लेते हैं लाइक 40% ही था, 30% ही था, 50% ही था, तो जो भी बच रहा है ना, उसको गिव अवे कीजिए। ठीक है, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना, लाइक दैट। चलिए, सो नाउ स्टॉपिंग द कमेंट बॉक्स, एंड फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वॉइस टूट जाए, कुछ हो जाए, हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं फिर अनम्यूट करके आपसे फिर पूछ लूंगा क्या दिक्कत आ गई है। ठीक है, चैट बॉक्स चलता रहता है तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, एंड नॉट एबल टू कंसंट्रेट, है ना, फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ठीक है,
बाकी कुछ लोग जो अच्छे से हैं, बहुत पुराने हैं, मेरी उनसे इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग वट एवर द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इवनिंग, और उस पे भी आपके अच्छे इनपुट्स चाहिए होंगे मुझे, ठीक है? चलिए। हाँ जी। तो हम लोग अभी जो हैं करेंटली, हमने स्टार्ट किया था बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी। बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। और इसमें हमने बेसिकली दो चीजों के बारे में बात की थी, ठीक है। हमने इसमें बात की थी बुल को, इसमें जो है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जो लोग, ऑल दोज हु वर नॉट अवेलेबल, आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड द वीडियो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टडी, ठीक है, इन विच बेसिकली टू ऑप्शन स्प्रेड्स आर टुगेदर, देयर आर टू ऑप्शन स्प्रेड्स टुगेदर, ठीक है। In the initial you may need some time to adjust according to this, but after that once you are well versed you can use the butterfly strategy in a very good manner, आप बहुत अच्छे से उसका फिर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में बेसिकली वी यूज एनी टू स्प्रेड्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, बियर कॉल स्प्रेड यूज करेंगे, ओके। और इन द केस इफ यू आर यूजिंग बुल पुट स्प्रेड, तो आप इसके साथ फिर बियर पुट स्प्रेड भी यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन टाइप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है टू स्प्रेड्स में कॉम्बिनेशन में, दैट इज दैट दोनों का जो टू स्प्रेड्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो ऑप्शन टाइप होगा, दैट हैज टू बी कॉमन, ठीक है। तो टू स्प्रेड्स जो आप कंबाइन कर रहे हैं, आइदर कॉल कॉल होगा और आइदर फिर पुट पुट होगा, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड कैसे रेडी होगा, बटरफ्लाई स्प्रेड में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, यू विल बाई अ कॉल ऑप्शन, ओके। सेकंड में आप क्या करेंगे, यू विल सेल टू कॉल ऑप्शंस ऑफ हायर स्ट्राइक प्राइस, हायर स्ट्राइक प्राइस, ओके। जो आपने यहाँ स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, उससे इसकी प्राइस जो होगी, इस वाले की जो दो टू कॉल ऑप्शन विच यू आर गोइंग टू सेल, उसकी स्ट्राइक प्राइस इससे हायर होगी, ठीक है। एंड थर्ड में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बाई another कॉल ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस इससे ज्यादा हाई होगी, कुछ मैंने ये पढ़ा दिया था उस दिन, बट स्टिल आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट, 5 मिनट का काम है, इट विल गेट रिवाइज्ड। द स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन दी कॉल ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली ये पुट ऑप्शन के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। दिस विल अप्लाई फॉर पुट ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। जरूर ट्राई करना, बैक टेस्टिंग इसकी जरूर करना, ठीक है। Whenever you get टाइम, जो भी स्टडी की है मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको सारा कुछ समझा दिया है। लाइव ट्रेड में मैंने इसको बैक टेस्ट अभी नहीं कराया है, बट इसको भी कराऊंगा मैं बैक टेस्ट आपसे। अभी तो लाइव ट्रेड में बस हम अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, बट आपका काम है इसको बैक टेस्ट करना, ठीक है। आप अलग अलग, जैसे सेंसिबल हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वहां पे आप डाल के देखिए, लाइव टेस्ट कीजिए वहां पे कि हाँ, ये जितने भी आपने स्प्रेड पढ़े हैं, जितने भी आपने स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जो भी पढ़े हैं, वो क्या सही में काम करता है या नहीं, कैलकुलेशन के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है रियल टाइम में वो प्रॉफिट मिलता है या नहीं। इस चीज को यू हैव टू बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू डू द बैक टेस्ट ऑफ, लाइक ट्रेडिंग व्यू पे आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, अब जैसे इंडिकेटर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसकी बैक टेस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा, एटलीस्ट 6 मंथ्स,
ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बैक टेस्ट करते हैं जाके, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब बटरफ्लाई का रूल क्या है, अगर आप मेरे से बात करें रूल क्या है, तो आप इसमें क्या करते हैं, यू बाई लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस मिडिल स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू हाइयर स्ट्राइक प्राइस माइनस मिडिल स्ट्राइक प्राइस, मिडिल स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। अब बेसिकली बटरफ्लाई जो है उसमें जो फर्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बाई अ कॉल ऑप्शन, वी विल सेल टू कॉल ऑप्शन एट ए हायर स्ट्राइक प्राइस एंड देन वी विल बाई another call option at even higher strike price, even higher strike price। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, कोई कॉल ऑप्शन बाई किया, ठीक है, जिसका जो फर्स्ट में बाई करना है, तो हमने बाई कर लिया कोई कॉल ऑप्शन। ठीक है। वो जो स्ट्राइक प्राइस इज रुपीज 900। ठीक है। सेकंड में वी व्हाट वी विल डू, वी विल सेल क्या, टू कॉल ऑप्शंस। ठीक है। टू कॉल ऑप्शंस एट हाइयर स्ट्राइक प्राइस, इसकी स्ट्राइक प्राइस से सेकंड वाले की स्ट्राइक प्राइस हाइयर होगी, तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया टू कॉल ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 1000। ओके। नाउ थर्ड में अगेन वी विल क्या करेंगे, बाई करेंगे, वी विल बाई another call option at even higher strike price, we will buy call option at another strike price that is मान लेते हैं 1100 हमने निकाला। ठीक है, लाइक दिस सेटअप इट विल वर्क, ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो बटरफ्लाई स्प्रेड जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड प्लस व्हाट, बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है। इसमें क्या होगा एग्जैक्टली, नेट आउटफ्लो ऑफ प्रीमियम जाएगा आपका, नेट आउटफ्लो ऑफ प्रीमियम विल बी देयर। ठीक है। रेशियो जो है वो कैसे चलेगा, 1:2:2:1, 1:2:1, वन कॉल, वन कॉल बाई, टू कॉल सेल, अगेन वन कॉल बाई, स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस इस तरीके से जाता जाएगा, ये इससे बड़ा, ठीक है, ये फिर इससे बड़ा ये, लाइक दिस इट विल बी, सॉरी उल्टा हो गया, ये फिर ये, लाइक दिस। ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस आएगा, जैसे आपने देखिए ध्यान से, फर्स्ट आपने बाई किया 900, सेकेंड आपने बाई किया 1000, थर्ड आपने बाई किया 1100, तो डिफरेंस इक्वल होगा दोनों के बीच का, जैसे इसका डिफरेंस अगर 100 है तो इन दोनों का डिफरेंस भी 100 होगा। इस तरीके से यू हैव टू चूज द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो आप बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटजी कब यूज करेंगे, तो बटरफ्लाई लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे जब मार्केट एक रेंज में है, कंसिस्टेंटली, जैसे बैंक निफ्टी पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली एक रेंज में काम कर रहा था, उस रेंज में अगर बैंक निफ्टी काम कर रहा है, देन इन दैट केस यू विल यूज लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। ठीक है। जब तक मार्केट रेंज में होगा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। जैसे ही मार्केट आउट ऑफ रेंज जाना स्टार्ट होगा, जब तक मार्केट इस रेंज में है यू विल स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिट, जैसे ही मार्केट इस रेंज के ऐसे बाहर अंदर अंदर ऐसे बाहर जाना शुरू होगा, आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। ठीक है। इसको वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, अभी हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इट विल गो लाइक दैट। ठीक है। मतलब नेट आउटफ्लो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, नेट आउटफ्लो प्रीमियम मीनिंग
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट आउटफ्लो प्रीमियम? नेट आउटफ्लो प्रीमियम का मतलब हो गया कि इसमें आपको लिमिटेड लॉस होगा और लिमिटेड प्रॉफिट होगा। मतलब वी हैव डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। वी हैव डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसके जो फॉर्मूलाज हैं मैं नोट करा रहा हूं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी कैलकुलेशन में आपको काम आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा डिफरेंस फ्रॉम मिडिल स्ट्राइक प्राइस टू लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम पेड। यहां से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, मैक्सिमम लॉस कहां से निकलेगा? नेट प्रीमियम का जो कॉस्ट होगा, जो आपने नेट प्रीमियम दिया होगा, दैट विल बी मैक्सिमम लॉस। ब्रेक इवन कहां से निकलेगा? ब्रेक इवन कहां से निकलेगा जी? ब्रेक इवन निकलेगा हायर अपसाइड के लिए। ब्रेक इवन में दो कंडीशन होंगे, फर्स्ट विल बी अपसाइड। अपसाइड के लिए हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम। डाउनसाइड के लिए लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट प्रीमियम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इस पे आप लोगों को आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द आंसर्स। स्टार्ट होते टाइम 73 लोग थे, धीरे धीरे सब गायब कहाँ हो जाता है? अटेंडेंस कंपल्सन नहीं है, इसका मतलब सब लोग धीरे धीरे गायब होते चले जाते हैं। चलो करो, टेक इन द स्क्रीनशॉट, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज टेकन द स्क्रीनशॉट। ले लिया ना सबने? कमेंट करो, बताओ ले लिया? स्क्रीनशॉट टेकन? ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, वी वी आर स्टडिंग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। हम अभी लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो दो एग्जांपल दोनों पे देखेंगे कि कैसे काम किया ये। ठीक है, मान लेते हैं, लेट अस सपोज ए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5500। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट रुपीज 5500। ठीक है, लॉट साइज जो है उसका है 100। ठीक है, हमने बाई किया, वी बाई, हमने बाई किया। स्ट्राइक प्राइस जो है वो 5000 है, और कॉल का जो प्रीमियम है इज रुपीज 600। ओके, फिर हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। दो कॉल ऑप्शन इसमें सेल होती है, तो हमने सेल की। कॉल स्ट्राइक प्राइस 5500, और जो हमने प्रीमियम पे किया वो रुपीज 130। फिर हम क्या करेंगे? फिर बाई करेंगे। बाई किया हमने, कॉल स्ट्राइक प्राइस इससे भी हायर होगा, पहले ये था उसका हायर ये, अब इसका भी हायर होगा। तो कॉल स्ट्राइक प्राइस हमने ले लिया 6000, और कॉल का जो हमने प्रीमियम पे किया वो किया रुपीज 40। ठीक है, दिस इज इट, है ना? हमने ये पे किया, अब आप लोग निकालिए। ठीक है, निकालिए। मैक्सिमम लॉस, नेट प्रीमियम, नेट डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ओके, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, अपसाइड और डाउनसाइड का, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। निकालो, जल्दी से निकाल के दो।
जल्दी कैलकुलेट प्लीज। मैक्सिमम लॉस 380। ब्रेक इवन पॉइंट गलत है निरुद्ध। रॉन्ग। दे रहा हूँ 3-4 मिनट टाइम निकाल के बताइए। ब्रेक इवन पॉइंट डाउन साइड 5380 करेक्ट। अपसाइड 5620 करेक्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट 120 करेक्ट। मैक्सिमम लॉस 380 करेक्ट। जिनका जिनका ये है सही है। मैक्सिमम लॉस इज 380। ओके। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अपसाइड इज 5380। डाउन साइड इज 5620। मैक्सिमम प्रॉफिट इज 120। निकालिए। 2 मिनट और दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर लीजिए, कर कर पा रहे हैं तो। नहीं तो कोई बात। देखिए, सबसे पहले वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस कैसे निकालेंगे? मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया आपको नेट प्रीमियम निकालने का। मैक्सिमम लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रीमियम कॉस्ट होता है। तो नेट प्रीमियम कॉस्ट कितना आएगा जी? कितना आएगा नेट प्रीमियम कॉस्ट? इसके लिए कितना है? 600। ओके। बताओ। इसके लिए कितना होगा? इसके लिए होगा, दो खरीदना है ना, ये तो 260 हो जाएगा ना, ये तो ये हो गया 260। और इसके लिए क्या हो गया? 40। तो ये आपको दे देगा कितना? 600 माइनस ये इधर उधर, तो ये हो गया आपको 380। ठीक है, 380। तो दिस इज द मैक्सिमम लॉस। अब इस केस में जब तक आपकी प्राइस 5000 है या फिर 5000 के बिलो है, ठीक है, ये सारे चार वो ऑप्शंस जो आपने खरीदे हैं, एक ये, दो ये, और एक ये ऑल क्या है? इनवैल्यूएबल है। दीज आर इनवैल्यूएबल। मतलब नो पे ऑफ, कोई भी पैसा नहीं देगा आपको। बट लॉस फिक्स है। लॉस आपका कितना होगा? 380 होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वी विल मूव टू एबव 5000, सपोज कीजिए हम पहुंच गए 5020 पे। ठीक है, तो नाउ योर लॉस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। अब आपका लॉस जो है वो क्या होगा? घटना शुरू होगा। कैसे? अब आप 5020 पे पहुंच गए, तो आप इस जोन में जा रहे हो, तो ये 260 वाला पे +20 रुपीज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल आपके पास ये है नेट लॉस 380। अब प्राइस ऊपर मूव की 20 रुपीज, तो ये कितना हो गया? 360। तो धीरे धीरे योर लॉसेज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एज एज एबव यू 5000 जब आप जाना शुरू करेंगे। ठीक है। सेकंड, सेकंड इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए निकालना है तो 5000 और प्लस योर मैक्सिमम लॉस कितना है? 380। नेट इन्वेस्टमेंट जो भी है, तो ये आ गया 5380। 5380 इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अपसाइड। इस केस में वी आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। डाउन साइड के लिए हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस कितना? 6000 और माइनस जो प्रीमियम पे किया टोटल नेट 380। तो दिस इज दी 5620। 5620 इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर डाउन साइड। जब तक आप इस पॉइंट पे हैं, यू आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? तो स्टॉक मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालोगे?
मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 500 माइनस 120, 380 इज योर, सॉरी 380, सॉरी 380, 500 माइनस 380, तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी हाउ मच? 120 रुपीज। ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू विल गेट, difference from the middle strike price to the lower strike price. तो difference from the middle strike price 5500, lower strike price 5000, तो 5500 माइनस 5000, 500। ठीक है, और माइनस नेट प्रीमियम पेड इज 380, तो 500 माइनस 380, 120। ठीक है, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सेम सारी चीजें हैं आपके पास। अब इस पे आप शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई निकालिए, इसी चीज पे सारे एनालिसिस के हिसाब से अब आप शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई निकालिए। ठीक है, जब तक मैं आपको फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई अपोजिट होगा, जस्ट इट विल बी जस्ट द अपोजिट। ठीक है, हम क्या करेंगे? वी विल सेल वन कॉल एट 5000, बाई टू कॉल, शॉर्टकट में निकल रहा हूं मैं यहाँ, 5500, एंड वन मोर कॉल बाई वन मोर कॉल एट 6000। ठीक है, निकालो, प्राइस वगैरह सब कुछ सेम है जो पहले था। ठीक है, निकालो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो फर्स्ट में, सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अपसाइड एंड डाउनसाइड का, और मैक्सिमम लॉस निकालो। ठीक है, लास्ट वाला तो लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई का एग्जांपल था। ठीक है, अब ये शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई हम निकाल रहे हैं। ठीक है, प्राइस सबकी सेम है, जैसे पिछली बार स्ट्राइक प्राइस थी, आपने जहां पे बाई किया था वहां पे सेल। ठीक है, वाह सन्नी, वेरी गुड। मैक्सिमम प्रॉफिट, आंसर ये है मैक्सिमम प्रॉफिट 380, ब्रेक इवन पॉइंट अपसाइड के लिए, अपसाइड 5380, लोग निकाल के भी बैठे हुए हैं, वेरी गुड। डाउन साइड के लिए 5620, और मैक्सिमम लॉस 120, वेरी गुड, वेरी गुड सनी। शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई सेल का, सॉरी हाँ ये सेल है, सॉरी। नहीं, अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को भी यार। या आप पिछले में आपने लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में आपने क्या किया, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में आपने क्या किया, क्या किया लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में? एक आपने बाई किया, दूसरा सेल किया, थर्ड फिर आपने बाई किया। तो शॉर्ट में क्या करोगे, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई में आप एक क्या करोगे, उल्टा होगा ना, एक सेल करोगे, दूसरा जो सेल है वो यहाँ बाई होगा, और थर्ड जो यहाँ बाई था वो फिर सेल हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये आंसर्स हैं, निकालिए, 2 मिनट टाइम और देता हूँ, उसके बाद मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बाई सेल में? जो बता तो दिया, यहाँ लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में आप फर्स्ट बाई करेंगे, एक कॉल बाई करेंगे, दो सेल करेंगे, फिर एक कॉल बाई करेंगे। उसका अपोजिट होगा शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई में, जहां बाई किया है वहां सेल होगा, जहां सेल किया है वहां बाई होगा, और जहां पे बाई किया है फिर वहां पे सेल होगा। कंफ्यूज मत करो यार।
यहाँ बाई होगा, उल्टा कर दिया था, यहाँ बाई होगा। सेल, बाई, यहाँ सेल, सॉरी, ये होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? नेट प्रीमियम रिसीव्ड। नेट प्रीमियम रिसीव्ड, इसका कितना था? 600, इसका था 130 और इसका था 40। तो 130 इंटू टू हो जाएगा ये 260। तो नेट प्रीमियम रिसीव्ड मतलब 600 माइनस 260 और प्लस 40, तो ये हो गया 380। तो मतलब जब तक प्राइस इज बिलो 5000 वी हैव फिक्स्ड प्रॉफिट। जब जैसे जैसे 5000 के ऊपर प्राइस निकलेगा, आवर प्रॉफिट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इन द फॉर्म ऑफ लॉस। ओके। सेकंड, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अपसाइड के लिए सिंपल है, 5000 प्लस 380, 5380। ठीक है। अपसाइड के लिए जब तक वी आर एट 5380 वी आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ही इसको हिट करेंगे, ऊपर जाएंगे, विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेज। ठीक है। डाउन साइड के लिए सिंपल, 6000 माइनस 380, इट इज 5620। दिस इज द ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट फॉर डाउन साइड। जब तक इसके आसपास हैं या इस पे हैं, वी आर इन ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे, विल स्टार्ट मेकिंग लॉस। मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 500 माइनस 380 is equal to 120. This is the maximum loss you will get in it. ठीक है। तो this is it for long call and short call butterfly। ठीक है, इस तरीके से ये फर्दर काम करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सारी चीजें हमें इसमें यहाँ पे समझनी और जाननी थी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप स्ट्रैटेजी जो भी आपने पढ़ी अभी तक, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, वर्टिकल, ऑप्शन स्ट्रैटेजी सारी, इन सब का बैक टेस्ट कीजिए। एक एक लॉट ले लेके बैक टेस्ट कीजिए मार्केट में। ठीक है। जब आप लाइव ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उन सबको बैक टेस्ट कीजिए, देखिए कि क्या, कौन सा स्ट्रेटजी कैसे काम करता है ऑप्शंस में। ठीक है। अगर आप ये आपको इंडेक्स में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इजीली अगर आप के लिए कोई भी स्ट्रेटजी फिक्स हो जाती है, बट इसके लिए कैपिटल बड़ा चाहिए। ठीक है, अब जहां बाइंग स्ट्रेटजी है वहां तो कैपिटल स्मॉल चाहिए, और जहां पे सेलिंग स्ट्रेटजी है वहां पे कैपिटल थोड़ा बड़ा चाहिए। ठीक है, यूनिट बिग कैपिटल। तो इजीली ये भी आपको, जो आपका CAGR है ना डेली 2% 3% का, ये भी खुद निकाल के चुपचाप आपको दे देगा। ठीक है, क्योंकि आपने अपना पूरा हेज कर लिया। दिस इज द रियल थिंग, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है ना, कि एक कॉल बाई किया 30 पैसे पे, ठीक है, 30 पैसा, 0.3 पैसा, और वो चला गया 300। दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग है। ठीक है, ये नहीं होता ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग ये होता है, जो आपने स्ट्रेटजीज पढ़ी, जो आपने सारी चीजें डिस्कस की, जो आपने जानी, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ हाँ, परफेक्ट टेस्ट, बैक टेस्टिंग में परफेक्ट एंट्री एग्जिट लेके आप स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन टेस्ट इट इन अ वेरी गुड मैनर। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्निकली। मतलब रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अंत नहीं है। Risk management is that type of topic whose no ending is there. ओके। बट रिस्क मैनेजमेंट, अभी जैसे आपका कैपिटल 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, जब आपका कैपिटल 10 लाख होगा, 10 लैक्स होगा, 25 लैक्स होगा, 50 लैक्स होगा, तब आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। और जब आपका कैपिटल 1 CR होगा, 2 CR होगा, 5 CR होगा, तब आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। जैसे जैसे आप बड़े कैपिटल की तरफ बढ़ेंगे, योर क्वांटिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो हायर द क्वांटिटी, हायर द लॉस,
और हायर द प्रॉफिट। सिंपल सा सिनारियो है। मैं 1 लाख से ट्रेड करता हूँ। मैंने 1 लाख से ट्रेड किया तो मेरा जो डेली का CAGR है 3% 4% बिठाया, मैंने 4,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूँ, तो 4% पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो 4,000 का या तो मैं लॉस ले रहा हूँ या फिर 4,000 का मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है। अब मैं अगर 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10,000 के केस में, 10 लाख के केस में अगर मैं 4% पे काम कर रहा हूँ, तो अब मेरा डेली टारगेट इज कितना? डेली टारगेट इज 40,000। बढ़ गया। ठीक है, 4% पे मैं काम कर रहा था तो अब लॉस भी 40,000 का होगा, प्रॉफिट भी 40,000 का होगा। सिमिलरली इफ आई एम ट्रेडिंग विथ 1 CR कैपिटल, 1 CR कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो नाउ माई टोटल, अगर मैं 4%, 1 CR तक मैं 4% हैंडल कर सकता हूं, ठीक है, तो 4% के हिसाब से अब डेली का 4 लाख है। मैं अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी फिर इस पे मैं आपको डिस्कशन करेंगे, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, डेली का 4 लाख है। ठीक है, मतलब नॉर्मल केसेस के सिनारियो में आप देखें तो जैसे जैसे योर कैपिटल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, योर डेली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल रिड्यूस। डेली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल रिड्यूस। ठीक है, आप डेली मार्केट से 1 करोड़ से 4 लाख रुपए नहीं निकाल पाएंगे, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 1 लाख से 4,000 रुपए आप 10 में से मार्केट में 8 बार निकाल लेंगे। 10 लाख से 40,000 आप मार्केट से 10 में से 8 बार निकाल लेंगे। बट 1 करोड़ से 4 लाख रुपए डेली का आप 10 में से मार्केट से सिर्फ 5 बार या 6 बार ही निकाल पाएंगे, वो भी अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो। बिकॉज योर लॉट साइज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, आपकी लॉट साइज जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट आपको आती है या नहीं, ठीक है, आप यूथलेस लाइटनिंग फास्ट काम करते हैं या नहीं, ठीक है, उन सब चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब अगर आप 10 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं और आप बोले कि मैं डेली का 4% निकालूंगा, तो डेली का 4% 10 करोड़ का 40 लाख रुपए होता है। मजाक थोड़ी चल रहा है यार। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ठीक है, इवन 1% भी, एक 10 करोड़ का 1% भी डेली का 10 लाख रुपीज होता है। ठीक है, तो एज मच एज द कैपिटल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो घटता चला जाएगा, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ओके, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो इन दैट केस वी हैव टू फॉलो 5 सर्टेन थिंग्स। ठीक है, बेसिकली जो हम टेक्निक्स जिसकी बात करते हैं, विच वी टॉक अबाउट इन रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज नंबर 1 इज 1% रूल। याद रखना, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं दैट विल बी इम्प्लाइड वन वंस योर कैपिटल इज 50 lakhs टू 1 CR। जब तक आपका कैपिटल 50 लाख से 1 CR के बीच में नहीं है, ये रूल्स जो आप टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ये इम्प्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, राइट नाउ तो वट एवर आई एम टेलिंग यू एज पर द लॉट साइज, वट एवर द थिंग्स, उसके हिसाब से चीजें आपके लिए काम करेंगी। ठीक है, 1% रूल। सेकंड इज स्टॉप लॉस। थर्ड इज हेजिंग ऑफ पोजीशंस। फोर्थ इज पोजीशन साइजिंग। फिफ्थ इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और सिक्स्थ इज पोजीशन ऑफ अनलिमिटेड लॉस। बेसिकली ये 6 पैरामीटर्स हैं ऑन विच यू हैव टू वर्क व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद अ बिग कैपिटल। ठीक है, दिस इज द थिंग। और याद रखना, 1 करोड़ का 100 टाइम्स 1 लाख होता है। सॉरी, 1 लाख का 100 टाइम्स, सॉरी, क्या बोला, हाँ, 1,000 का 100 टाइम्स 1 लाख होगा। ठीक है, 1 लाख का 100 टाइम्स 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ का 100 टाइम्स आप वो कर सकते हैं वो। तो यहाँ तो लोग डेली के मार्केट में 10-10 20-20% निकालने वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ 1 लाख रुपए से मार्केट में डेली का मैं मतलब
10% तो भाई डेली का निकालना। आप अब ट्रेड कर रहे हैं ना, आपको अगर आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, यू आर ट्रेडिंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब जो लोग 10-10%, 20-20% का कमिटमेंट कर रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे, मंथली नहीं, डेली बेसिस पे, वो मतलब क्या कर रहे हैं वो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो उतना ही कम, उतना ही यू हैव टू थिंक दैट मच ओनली विच यू कैन इजिली जनरेट। तो मुझे लगता है हाँ, मार्केट में डेली 2.5% से 4% निकाला जा सकता है, व्हेन योर कैपिटल इज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख to 1 CR अगर कैपिटल है, तो वी कैन इजिली जनरेट 2.5% to 4% समवेयर। ठीक है, अब 1 लाख में आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, 10 लैक्स में आपका जब कैपिटल पहुंचेगा उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, 1 करोड़ जब पहुंचेगा उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, 10 करोड़ पहुंचेगा उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। क्यों? बिकॉज योर क्वांटिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, और जितनी बड़ी क्वांटिटी उतना बड़ा प्रॉफिट और उतना बड़ा लॉस। ठीक है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, है ना। दिस दैट्स इट, दैट इज व्हाई दुनिया में सब लोग सब कुछ सीख जाते हैं, ट्रेडर कोई क्यों नहीं बन पाता। ठीक है, आप दुनिया में सारे टेक्निक, सारे एनालाइज, सब कुछ सीख जाते हैं। आप ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते? सब लोग ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते? ट्रेडर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि आपके रिस्क मैनेजमेंट में कमी रह जाती है। आपका जो ग्रीड है वो हर बार आपकी पूरी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी को तोड़ के रख देता है, एकदम। इट जस्ट क्या बोलूं मैं, मतलब इतनी बार आपको ये, आपका जो ग्रीड है इतने थप्पड़ मारता है आपको, इतनी बार आपको ये ग्रीड डुबाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपके रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा देता है लाइव ट्रेड के टाइम पे। ठीक है, सो ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा अपने कैपिटल का, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले नॉर्मल जो बात करते हैं, ये तो मैं लाइव ट्रेड वाले ग्रुप में आपके साथ बात करूंगा। अभी जो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, दिस इज फॉर व्हेन योर कैपिटल इज 50 lakhs to 1 CR। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लेते हैं, बाकी जो बड़ी चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, क्या चीजें हैं, बड़े कैपिटल को कैसे हैंडल करेंगे, वो तो हम वहाँ टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, क्योंकि हम सब लोगों का कैपिटल एक साथ ग्रो हो रहा है, एक ही हिसाब से ग्रो हो रहा है ना, और उसके हिसाब से फिर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे इस मंथ में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उस दिन से अभी तक अगर मेरा मेरा कैपिटल जो पर्सनली 1 लाख रुपीज है, वो 3 दिन हमने साइड लाइव ट्रेड किया है, उसमें इट इज राइट नाउ समवेयर सिटिंग एट 11 to 13 thousand, 11 to 13 thousand ऑन एन एवरेज। जितना मैंने 50 पॉइंट ही कैलकुलेट किया है 50 पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक दिन हमारा एसएल भी गया है, एक दिन हमारे पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट भी रही है, और एक दिन हमने अच्छा प्रॉफिट भी किया है। तो अकॉर्डिंगली आपका भी उसी हिसाब से ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक वीक में अगर मैं 10,000 निकाल रहा हूँ, मतलब मैंने 10% निकाला एक वीक में। समझ रहे हो आप? तो 5 वीक आता है, 4 वीक तो ऑन एवरेज होता ही है। अगर 10-10 वीक भी कैलकुलेट कर तो 40% निकाला हमने टोटल। तो 1 लाख का 40% कितना निकल गया? 40,000 रुपीज निकला। ठीक है, इस तरीके से का ये मैं इसको डिस्कस करूंगा लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में आपके साथ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है द 1% रूल। 1% रूल। ठीक है, बेसिकली कैपिटल एलोकेशन कैसे होना चाहिए। कैपिटल एलोकेशन, याद रखना, दो जो आप पढ़ रहे हो, दिस इज इम्प्लाइड फॉर 1 CR। जब आप आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल के अंदर आप 1 CR पहुंचोगे, पहुंचना ही है। ठीक है, पहुंचोगे की बात भी नहीं है, पहुंचना ही है। आपको सपना लगता होगा, बट कोई बात नहीं, हर किसी के लिए 1 लाख से स्टार्ट करके 10 लाख और 1 करोड़ पहुंचना सपना ही था। और सब बहुत से लोगों ने इस चीज को अचीव किया है, तो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस कंसिस्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, और अपने दिमाग पे प्रॉफिट सवार मत होने देना। ठीक है, नेवर एवर लेट द प्रॉफिट राइड योर माइंड। ठीक है, अपने दिमाग के घोड़े के ऊपर प्रॉफिट को सवार मत होने देना। आप आराम से सोते सोते, हंसते हंसते, गाते गाते 1 1.5 साल 2 साल में 1 CR के ट्रेड कैपिटल पे पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बिना कुछ कोई स्पेशल हिकअप्स किए, है ना। बस अपने एक्सपेंसेस को सही से मैनेज कीजिए। ठीक है, अपने जो भी आपके सारे जो आपने CAGR बना रखा है, उसके हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, विद इन 2 इयर्स 1 लाख से अगर आपने स्टार्ट किया है, 2 साल में आप आराम से, इसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर।
ठीक है, आपके कैपिटल को बूस्ट करने में, आपके कैपिटल को मतलब समझिए एक तरीके से। अब जो मैं आपको गिव अवे दे रहा हूँ हर महीने, जो भी मैं गिव अवे करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज, आप उसको कहीं और यूज नहीं करेंगे, वो आपके कैपिटल में इन्फ्यूजन होगा। मतलब जैसे 1 लाख रुपए से आपने एक महीने में सपोज कीजिए 40 हजार रुपए बनाए, मान लेते हैं। ठीक है, 40 हजार रुपए बनाए, मैंने आपको इधर से इन्फ्यूज किया, 25 हजार ही मान के चलता हूं। तो अब आपके पास टोटल हो गया 65 थाउजेंड। अब आप ट्रेड करेंगे 1 लाख कितना से, 30 थाउजेंड से, या जो भी है आपका, 1 लाख 20 थाउजेंड से, 25 थाउजेंड से, 1 लाख 25 थाउजेंड से आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, आपने 40 थाउजेंड रुपीज निकाल लिया, या जो भी किया आपने अपने हिसाब से किया। ठीक है, फिर अगेन अब इस पे जो प्रॉफिट आया, फिर मैं उस पे कुछ आपको इन्फ्यूज कर रहा हूँ, तो आई विल डू द इन्फ्यूजन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फॉर यू, ताकि आप जल्दी से, मेरा जो टारगेट है 10 लाख तक आप पहुंच जाएं, सब लोग मिलके। ठीक है, 10 लाख तक एक बार पहुंच गए तो फिर तो भैया गेम इज ऑन डिफरेंट लेवल, है ना, फिर गेम एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मैं पर्सनली ग्रोथ करने में बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिव ग्रोथ करने में बिलीव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक स्टेबल इनकम भी हो जाए, और आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जहां से आप डेली अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और आप कलेक्टिवली फिर वहां से ग्रो कर रहे हैं, और साथ में आप सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार जैसे ही आपका कैपिटल 10 लाख रुपीज पहुंच जाएगा, ठीक है, गेम विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, है ना, वो फिर अलग गेम हम खेल रहे होंगे, देयर द गेम विल बी कंप्लीटली ऑन डिफरेंट लेवल, है ना। याद रखो, जहां आप हो और जहां आपको जाना है उसमें बहुत फर्क है। करेंटली यू आर ट्रेडिंग इन रुपी, वन डे यू हैव टू ट्रेड इन डॉलर, एंड 1 रुपी इज इक्वल टू 80, 1 डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपी। ठीक है, तो अगर आपने सपोज करो 3 हजार डॉलर डाले, ठीक है, 80 80, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर आपने 3 हजार डॉलर डाले, तो मान लीजिए ये 3 हजार डॉलर आपके लिए 2.5 लाख रुपीज है, मजाक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। और जो आप फॉरेक्स में काम करते हैं, देर इज लीवरेज, आप जितना ज्यादा लीवरेज लेंगे, आपका अकाउंट उतना तेजी से खाली होगा। मतलब क्या, अगर आपने 3 थाउजेंड डॉलर डाला, और आपका रिस्क मैनेजमेंट जैसे आप यहाँ बैंक निफ्टी निफ्टी में करते हैं, अगर यही काम आपने वहां पे किया, ये 3 हजार डॉलर 2 मिनट में साफ हो जाएगा आपका। क्योंकि जैसे क्या होगा कि मान लीजिए आपने बिटकॉइन का एक लॉट खरीदा, तो एक लॉट आपको वहां सपोज कीजिए 160 डॉलर में आ जाता है। आपके अंदर तूफान चढ़ा, नहीं मैं एक लॉट क्यों लूंगा, मैं 20 लॉट लूंगा। एक ही साथ आपने हाईएस्ट क्वांटिटी आप 20 लॉट खरीद सकते हैं। आपने 20 लॉट खरीद लिया, आपके पास टोटल कैपिटल था 5 थाउजेंड डॉलर, आपने खरीद लिया, और आपने लीवरेज सेलेक्ट किया हुआ है अनलिमिटेड। ये ये फॉरेक्स में ट्रेड करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लोग यहाँ पे इसलिए ट्रेडिंग करने आते हैं क्योंकि लीवरेज यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है, 1:1000, 1:2000, तो उनको लगता है अरे भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे तो फिर चांदी ही चांदी है। लेकिन अगर आप इस सपने के साथ यहाँ आएंगे, तो आपका अकाउंट इतनी बार खाली होगा डॉलर्स में, कि जितना इंडियन मार्केट में लॉस नहीं हुआ है ना, उतना उसका, जितना आपने इंडियन मार्केट में अगर 5 ईयर्स में लॉस किया होगा, उतना यहाँ आप 5 मंथ्स में कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो थिंग्स आर ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल यार। तो आपने 20 लॉट खरीद लिया, सपोज करते हैं 3500 डॉलर में आपने 20 लॉट खरीद लिया। ठीक है, अब आपके अकाउंट में मार्जिन अमाउंट बचा हुआ है मनली 1500। ठीक है, 3500 डॉलर में आपने ये खरीदा, और इसमें आपने 300 डॉलर का चार्ज दे दिया। ठीक है, तो आपके अकाउंट में अब बचा हुआ है मार्जिन अबाउट 1200। ठीक है, अब जैसे ही अब आपने लीवरेज सेलेक्ट किया हुआ है 1:, मान लेते हैं 1000। तो जैसे ही मार्केट अगर 10 पिप्स भी नीचे आएगा, आपका मार्जिन खाली हो जाएगा, ये इसको खत्म कर देगा वो। ठीक है, अब आपके कैपिटल पर डेंट करना स्टार्ट हो जाएगा वहां भाई। एक एक कैंडल देख ही रहे होगे आप, चार्ट, एक एक कैंडल बनती है सीधे 600 700 पॉइंट की। ठीक है, तो गेम इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वेरी बिग। गोल्ड में आप देखोगे एक एक कैंडल बनती है सीधा 12 12 पिप्स की, 12 12 पॉइंट्स की, एक पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप्स। ठीक है, तो गेम बहुत अलग लेवल पे है। तो उसके हिसाब से अगर प्रिपेयर होना है, रेडी होना है, तो आपको इंडियन मार्केट में जम के अपना पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओके, बाकी इसके रिलेटेड जो लाइव ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, उसके रिलेटेड हम लोग बाकी काम करेंगे अभी। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी दी 1% रूल। मान लीजिए किसी दिन क्या पहुंचेंगे, दो एक डेढ़, मेरा टारगेट है 2 साल में सबका कैपिटल, 100 लोग हैं, सबका कैपिटल 1 1 करोड़ पहुंच जाए विद इन 2 ईयर्स। आई एम
बिग, वेरी मच, व्हाट वी कैन से ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज के लिए, ठीक है, कि आपका कैपिटल एनी हाउ एक साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मतलब एक एक 1 CR पहुंचे, फिर तो 100 लोग 100 करोड़ हो गए ना। ठीक है, इट इज लाइक दैट। ठीक। तो मेरा ये टारगेट है ना। अब मान लीजिए जिस दिन आपका कैपिटल 1 करोड़ पहुंच गया, ठीक है, योर टोटल कैपिटल विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में आपका कैपिटल डिवाइड हो जाएगा। नंबर 1 विल बी इक्विटी, नंबर 2 विल बी डेप्ट, नंबर 3 विल बी रियल एस्टेट, नंबर 4 विल बी गोल्ड, नंबर 5 विल बी कैश। इक्विटी मतलब ट्रेडिंग। इक्विटी मतलब ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जाएगा 30%। ठीक है। डेप्ट में जाएगा आपका 15%। रियल एस्टेट में जाएगा आपका 15%। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करोगे 20%। और फिर कैश में आप इन्वेस्ट करोगे 20%। ये कैलकुलेशन चलेगी। ठीक है, दिस विल बी द कैपिटल एलोकेशन व्हेन योर ट्रेडिंग कैपिटल विल रीच 1 CR। दिस विल बी द कैपिटल एलोकेशन। ठीक है, रोड मैप पहले से रेडी है ना। ठीक है। दिस विल बी द कैपिटल एलोकेशन इन शॉर्ट। या तो ये, और 1 CR पूरा अपने दिमाग में बिठा, नहीं नहीं मेरे को ये सब नहीं करना है, मेरे को सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। तो 1 CR डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, 25 lakhs ईच। दैट्स इट। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, इफ यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज, आप अपने अकाउंट में हमेशा सिर्फ 33,000 रखो। बाकी का 2 पार्ट जो है, 33,000 और 33,000, दोनों को, अकाउंट में आपके 1 लाख है तो डीमैट में सिर्फ 33,000 रखो। ठीक है, बाकी के ये दोनों को अकाउंट में डाल के रखो। जब भी फॉरेक्स में भी जब ट्रेड करने जाओगे, तो आप फॉरेक्स में अपने अकाउंट से, मतलब जो आपका वॉलेट है, वॉलेट बहुत सारे हैं, बाइनेंस है, बिंग एक्स है, ट्रस्टेड है, वजीर एक्स है, मुद्रेक्स है, वहां पे आपने जो यूएसडीटी में क्रिप्टो रखा हुआ है, वो पूरा का पूरा फॉरेक्स अकाउंट में ट्रांसफर मत कर लेना। सपोज करो आप 10,000 यूएसडीटी से ट्रेड करने के लिए कैपिटल लेके आए हो। 10,000 यूएसडीटी समवेयर अराउंड 8.5 लाख रुपीज। ठीक है, तो आप इसका 3 पार्ट डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 3,300 USDT यू विल सबमिट इट इन योर फॉरेक्स अकाउंट। बाकी का इट विल बी इन योर वॉलेट। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजीज हैं दिमाग से काम करने की। क्योंकि अगर आप पूरा कैपिटल लेके बैठोगे, वाइप आउट होना ही होना है। क्योंकि लॉस होगा, आपके इमोशंस टूटेंगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग के लिए जाओगे। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग जाओगे ही जाओगे, है ना। वो तो अभी 1 हफ्ते से हमारे साथ लाइव ट्रेड कर रहे हो, और थोड़ा डर बना हुआ है मेरा कि भाई साहब रिपोर्ट उपोर्ट मांग लिया कहीं, और पता चला ओवर ट्रेडिंग की हुई है, लॉस किया हुआ है, तो कहीं ग्रुप से ना निकाल दे, फिर लाइव ट्रेड कैसे करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो। बट जब आप अकेले, कभी तो कभी, कभी होंगे मौके जब आप अकेले ओवर ट्रेड कर रहे होगे, जब ट्रेडिंग करोगे और आपके अकाउंट में कैपिटल होगा, और उसका जब आप 30% गंवा दोगे किसी दिन, तो आपके अंदर आ जाएगा रिवेंज ट्रेडिंग का भूत। ठीक है, जो आपको बर्बाद करने के लिए काफी होगा। द गोस्ट ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग विल कम इन यू, है ना। को प्ले स्टेशन खेलते होंगे तो गेम सुना है ना, गोस्ट ऑफ सुशीमा। उसी तरीके से द रिवेंज ट्रेडिंग घोस्ट विल कम इनसाइड यू, एंड इट विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू इन द बिगेस्ट एंड बेस्टेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। इफ यू आर ट्रेडिंग विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, जस्ट डिवाइड इट इंटू 3 पार्ट्स, 33,000 ईच। और 1 पार्ट डीमैट में रखो, 2 पार्ट अकाउंट में रखो। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, 33,000 ईच। डेली का टारगेट इस 3%, इसी 33,000 से 3,000 रुपये निकालना है। ठीक है, जब ये वाइप आउट होगा फिर दूसरा लेके आओ, जब ये वाइप आउट होगा फिर तीसरा लेके आओ, लाइक दैट। और कोशिश करो कि कभी फर्स्ट वाइप आउट हो ही ना, वो इंक्रीज होता जाए। जब 33,000 से ट्रेड कर रहे हो, योर फर्स्ट टारगेट ही कि सबसे पहले इसका 33,000 का बैकअप बन जाए, ये चला जाए अकाउंट में। नाउ यू हैव रुपीज 1 लाख रुपीज इन योर अकाउंट, एंड नाउ यू हैव 33,000 एज प्रॉफिट। सो नाउ यू कैन टेक अ रिस्क। आप छोटा छोटा रिस्क ले सकते हो, बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट गेम। ट्रेडर बड़ा बनता है जब वो प्रॉफिट पे रिस्क लेता है, ना कि अपने कैपिटल पे रिस्क लेता है। ठीक है, अगर आप अपने कैपिटल पे रिस्क लोगे तो यहाँ तो सब, वो बोलते हैं ना, एक दूसरे के चेहरे में छुपा है दर्द, द पेन ऑफ लॉस इज
इनसाइड द फेस ऑफ ईच एंड एवरी वन हेयर। सब एक दूसरे का चेहरा देख के समझ जाओ बिना कुछ बोले कि क्या कहानी है। ठीक है, इट इज लाइक दैट। ओके, सो वंस योर कैपिटल इज 1 CR, आप 30 लाख से ट्रेड करेंगे, 15 लाख आपका डेप्ट में जाएगा। ओके, 15% रियल एस्टेट, 15 लाख रुपए आपका रियल एस्टेट में, मतलब कहीं जमीन जायदाद, कहीं आपने 15 लाख की जमीन खरीद के रख दी, या 15 लाख रुपए आपने कहीं पे कुछ भी रियल एस्टेट में आपने डाल दिया। ठीक है, गोल्ड में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और कैश में 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा आपका। क्योंकि 1 CR से जब आप ट्रेड करोगे तो डेली का टारगेट यू विल हैव अराउंड 2%, 2 to 3%। ठीक है, तो 30 लाख से आप ट्रेड करोगे, 30 लाख से ट्रेड करोगे। ये जो है ये सारा, ठीक है, ये सारा का सारा पैसा जो है वो एक लिक्विडिटी है आपके लिए। मान लीजिए आपका 30 लाख का कैपिटल निकल गया, अब आपके पास 70 लाख इसमें लिक्विड एसेट में बचा हुआ है। आप किसी को भी डिजॉल्व करके फिर कैपिटल ट्रेडिंग में लेके आ सकते हो। लाइक दैट यू कैन डू। ठीक है, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इस तरीके से चलती है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कब जब हम 1 CR पहुंचे, और जब आप उसमें 30 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो उसका डेली का जो हमारा टारगेट है, अगर 1 CR से डेली हमने टारगेट रखा है 2 से 3%, तो आप आराम से डेली 2 लाख 3 लाख रुपए निकाल, 30 लाख रुपए से 2 लाख 3 लाख निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इट कैन इजिली बी डन। ठीक है, बट वही है, till the time 1 year, 1 year is going to be a very big barrier for you. 1 year you have to be totally in the, मतलब command of, you have to command your own mind। ठीक है, एकदम। अभी धीरे धीरे मैं छोटे छोटे लॉसेज, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट के लॉसेज देने की आदत लगा रहा हूँ ना मार्केट में। जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ भाई। बट यस, इफ मार्केट इज टेकिंग द SL एंड यू हैव 2 SL हिट एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ द मार्केट, आपको आज दर्द हो रहा होगा, कल दर्द होगा, परसों दर्द होगा, बट आफ्टर 10 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, यू विल सी इट वॉज वंडर। ये वंडर था आपके लिए। फिर एक बार देखो, कोई भी ट्रेडर, चाहे वो इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हो, चाहे फॉरेक्स में करता हो, चाहे क्रिप्टो में करता हो, सबकी सबसे बड़ी बीमारी है एसएल नहीं देने की। एसएल नहीं देने की। तो अगर आप एसएल देना सीख गए मार्केट को, नो, और आप प्रॉपर फिर उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड पे काम करने चालू कर गए, अपने सेटअप पे बैठ के वेट करने लगे और प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ काम करने लगे, नो वन इज गोइंग टू बीट यू इन दिस मार्केट इन द लॉन्गर रन। सीरियसली, नो वन इज गोइंग टू बीट यू इन दिस मार्केट, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये नहीं होगा। ठीक है, सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ठीक है, आपके लिए हर हाल में आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका भगवान है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका भगवान है। ओके, हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस, कितनी कहानियां हो गई इस पे कि स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग स्टॉप लॉस इन द मार्केट, मतलब आप उस दिन भगवान की प्रार्थना करके नहीं आए हो, या फिर आपने नहाया नहीं है, इट इज लाइक दैट। है ना? या फिर बहुत सारे चीजें हैं, सब लोग जानते हैं स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन लगाता कोई नहीं। ठीक है, लाल रंग से इतना प्यार क्यों है? वाई 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 वाई। ठीक है, आप अगर डेली मान लो 20 दिन ट्रेडिंग होती है, ठीक है, 20 दिन ट्रेडिंग होती है, मैं मानता हूं 5 दिन आपने 2 ट्रेड लिए होंगे, डेली 2 ट्रेड्स लिए होंगे, तो आपके 5 दिन में 10 ट्रेड लॉस हुए होंगे। 10 ट्रेड में आपके अगर ऑन एन एवरेज 50 पॉइंट आपने दिए होंगे, तो आपका 500 पॉइंट का लॉस हो गया होगा, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन 15 डेज में अगर आपने 4 ट्रेड लिए हैं, और अगर उसमें पर ट्रेड भी अगर आपको, ठीक है, 30 पॉइंट का भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो 15 × 4 हो गया 60, 60 × 30 1800 पॉइंट्स। ठीक है, और इसमें से 500 माइनस कर दो, तो टोटल हो गया 1300 पॉइंट्स। ये 1300 पॉइंट के प्रॉफिट पे आप बैठे हो। और अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो और 4 लॉट में भी अगर काम कर रहे हो, तो 1300 पॉइंट इंटू, अगर कितना होगा, 4 लॉट हो गया 15 × 60। ठीक है, 70 कितना हो गया, ये 78,000। ठीक है, समझ रहे हो इस फिगर का मतलब? अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी तो मेरे को बताना। ठीक है, आप इसका मतलब समझिए। अल्टीमेटली बिग पिक्चर देखिए, 20 ट्रेडिंग सेशन की कहानी है ये। अगर 20 ट्रेडिंग सेशन है डेली, एक ट्रेड, एक एक सेशन में 2 SL हिट हो गए, 50-50 पॉइंट का भी SL दिया डेली, तो 500 पॉइंट चला गया। ठीक है, अब बाकी का बचा 15 सेशन,
चार ट्रेड लिया, चार ट्रेड में पर ट्रेड अगर 30 पॉइंट भी प्रॉफिट बुक किया तो 4 इंटू 30, 1200 कितना, 120 पॉइंट्स हुआ ना जी। ठीक है, और 120 पॉइंट्स इंटू फिर फर्दर ये 15। ठीक है, तो आप देखिए गेम कहाँ चला गया आपके लिए, एक नेक्स्ट लेवल की गेम बन गई फिर। तो आप इस चीज को समझिए ना, आपको लॉस देने में डर नहीं लगना चाहिए। आप बड़े पिक्चर को देखिए। अरे मैं चार ट्रेड छोड़ो, मैं 30 पॉइंट भी छोड़ो, मैं 15 इंटू 4 ट्रेड और इंटू 20 पॉइंट भी जोड़ता हूँ तो 1200 पॉइंट होते हैं भाई। 1200 पॉइंट होते हैं। 1200 पॉइंट माइनस 500 पॉइंट इज इक्वल टू 700 पॉइंट्स, और 700 पॉइंट्स इंटू आपका 60, कंटिन्यू कर दो, 42,000 बन रहा है यार। 40% निकाल रहे हो आप रिटर्न एक महीने में। मजाक समझ रहे हो क्या इसका मतलब? ठीक है, दिस इज द रियल गेम ऑफ, तो आप एक दिन लॉस हो जाता है, आप उसको देख के आप अपना दिमाग खराब कर लेते हो। आप पिक्चर नहीं देख रहे हो कि 20वें दिन पे क्या पिक्चर निकल के आएगी। अरे भाई टाइम तो दो, गिव टाइम टू मार्केट, गिव टाइम टू योर सेल्फ। माँ के बोलते हैं ना, माँ के पेट से जब निकले थे तो एक दिन के थे। आज आप 28 ईयर्स के एक दिन में नहीं हो गए हो, 28 ईयर्स लगे हैं, 25 ईयर्स लगे हैं आपको यहाँ तक आने में। तो मार्केट को थोड़ा टाइम तो दो आपके हिसाब से एडजस्ट होने के लिए। आप अपने आप को टाइम तो दो मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होने के लिए, बिग पिक्चर देखो ना। ठीक है, बिग पिक्चर देखिए, प्लीज ट्राई टू डू दी कैलकुलेशंस एज पर दीज थिंग्स, है ना, ये आप जानते हैं, यू आर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। बट वो एक दिन में 1 लाख को 5 लाख बनाने की जो जिद है, जो हसरत है, जो ग्रीड है ना, जो मन के अंदर जो वो राक्षस बैठा है, जो जो घोस्ट बैठा है, उसको बीट तो करना आपने ही है, यू हैव टू बीट इट। समझिए इस चीज को। ठीक है, आप सोचिए, आप ऑन एन एवरेज 40,000 भी पर मंथ निकाल रहे हैं। अगर 12 महीने आपने ऑन एन एवरेज सिर्फ इतना ही निकाला, मैं कंपाउंडिंग भी नहीं जोड़ रहा हूँ, अभी 42,000 है। 1 लाख से ट्रेड करने पे, 1 लाख को जैसे ही खत्म किया, मैं बनवाऊंगा 1 लाख रुपए। ठीक है, बस और मैंने आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए फर्दर ये भी चीज कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेबल इनकम आपके पास हर महीने पहुंच जाए, ताकि घर के खर्चे, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी चीजें हैं उनका टेंशन ना लेना पड़े। तो फिर तो प्रेशर खत्म ना। ठीक है, तो मैं बनवाऊंगा 1 लाख रुपए, मैं बनवाऊंगा, है ना। अगर आपके पास आज कैपिटल 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख नहीं हो पा रहा है, कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, कोई ब्याज पे पैसा लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, रहने दो वैसे ही। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 3 4 महीने का मेरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन का प्रॉफिट आपके पास चला जाएगा, उससे मेरा कुछ नहीं जाना। बट आई विल हेल्प यू इन मेकिंग योर कैपिटल। बट अब वो कैपिटल आपको मिल रहा है, इजी मनी कहीं से आ गई और आप उसको लॉस कर रहे हो, डूब रहा है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक एक मंथ में गिव अवे करके आपको 25,000 भेज दिया, आप 1,25,000 से ट्रेड कर रहे हो, और अगले महीने आपने उसको अगर डुबा दिया ओवर ट्रेडिंग में, मेरे साथ डूब गया, इट इज माई फॉल्ट। अगर मैंने डुबवाया ट्रेड करके, दैट इज माई फॉल्ट। आपने अकेले अगर खुद डुबा दिया, मैं नहीं दूंगा फिर आपको, जाओ आप। ठीक है, मेरे साथ गलती हो के डूबो, क्योंकि मुझे पता है इफ आई एम ट्रेडिंग फॉर 20 डेज, ऐसा शायद, मतलब मेरे जीते जी तो कभी नहीं होगा कि मेरा 20 के 20 दिन एसएल हिट हो जाए, नहीं होगा। 5 दिन एसएल लेके जाएगा। ठीक है, आफ्टर माई एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years ऑफ 7 years ऑफ ट्रेडिंग, आई कैन सी, आई कैन एनालाइज माई सेल्फ, ओके 5 days मार्केट विल विन, 15 days आई एम गोइंग टू विन, एंड ऑन एन एवरेज 15 days आई एम डेली गोइंग टू बुक 50 to 75 पॉइंट्स। दिस इज द थिंग, आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, तो मेरी हेल्प आपके लिए है, तो आपको अपने आप को उठाना है अगर, है ना, इस गरीबी की जंजीर से, दिस पुअर थिंग, दिस पुअर सोसाइटी एंड ऑल थिंग्स से ऊपर उठ के निकलना है, तो आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ। ठीक है, मनी मेकिंग इज नॉट अ बिग थिंग हियर इन ट्रेडिंग। मनी, पैसे तो यार क्या बोलूं, देर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। देर इज नो लिमिट, सीरियसली देर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप कितना पैसा बना सकते हो ट्रेडिंग में, उसकी मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, बट वही है, उसको संभालना आना चाहिए, लोगों पे भूत सवार हो जाता है। द घोस्ट ऑफ प्रॉफिट, द घोस्ट ऑफ इजी मनी स्टार्ट्स हॉन्टिंग यू। होता है ना, जब मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो वी नो द थिंग। यार फिर भी आप मेहनत तो कर रहे हो ना, आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने पे यू आर नाउ, योर हार्ट बीट इज स्टार्टिंग, यू व्हेन यू आर इन लॉस, यू आर फीलिंग फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, आप कितने स्ट्रेस से गुजर रहे हो,
आप जिस जहाँ पे बैठ के ट्रेड कर रहे हो वो हॉट सीट बन जाता है। मतलब उसका टेम्परेचर नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, आपकी पूरी बॉडी शिवरिंग। आप कितने मेंटल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस से गुजर रहे हो उस टाइम पे। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स विच यू आर डूइंग। ट्रेडिंग इज नॉट अ इजी मनी। ये शरीर पे कहीं ना कहीं तो नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, तो एटलीस्ट मेंटली यू आर गेटिंग मेंटली एग्जॉस्टेड, मेंटली एग्जॉस्टेड। ठीक है, मेंटली तो एग्जॉस्ट हो रहे हो ना आप, कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग मेंटली एग्जॉस्टेड। मेंटली एग्जॉस्टेड मतलब क्या? यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी समवेयर। तो दिस इज नॉट द इजी मनी। तो जो पैसा आ रहा है ना उसको संभालना सीखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और बाकी आपका जो CAGR है वो आपका गोल है। अभी भी मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी हम लोग सीरियसली स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर लगता है CAGR में कहीं कोई गलती है कैलकुलेशन में, उसको अभी भी ठीक कर लो। ठीक है, दैट बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर यू इन 10 years। 10 साल, 10 साल छोड़ो, 2 to 3 years, जस्ट फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट बी विथ योर फैमिली, जस्ट लव योर फैमिली, जस्ट लव योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर किड्स, योर गर्लफ्रेंड, योर फ्रेंड्स। बाकी पूरी दुनिया त्याग दो 2-3 साल के लिए। ठीक है, अरे 2-3 साल आप क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स नहीं करोगे, 2-3 साल आप गाड़ी में नहीं घूमोगे, 2-3 साल आप, और ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी पाओगे। ठीक है, हाँ, जो आपकी हसरतें हैं कि हर साल आईफोन अपग्रेड करना है, ठीक है, हर साल मेरे को इतने हजार के कपड़े खरीदने हैं, इस कंट्री में घूमने जाना है, ये स्टेट में घूमना है, ये चीजें करनी है, इतने सारे वो लोन्स, ये सारी चीजें करनी है, ये सब हसरतें 2-3 साल के लिए भूल जाइए। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ को जिए 2-3 years तक, फिर फोड़िए। फिर 2-3 साल में तो आपके 1 लाख इजिली, इट विल बी अबव 1 CR, आराम से होगा। आपका CAGR पेपर, मैंने ये चीज ये पर्सनली इस चीज को देखा है, और बहुत सारे लोगों ने इसको बैक टेस्ट भी किया है। जो आप CAGR पेपर पे कैलकुलेट करते हैं, अगर मान लीजिए CAGR पे आपको 1 करोड़ का फिगर दिखा रहा है वो 3 years के बाद, तो रियल लाइफ में मार्केट के पावर के हिसाब से ये जो 1 CR है, आप इसको हर हाल में 2 years के अंदर अंदर ही अचीव कर लेंगे। यू विल अचीव इट। मतलब आप 1 year एडवांस में जा रहे होंगे। यू विल बी लिविंग इन 1 year एडवांस। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम 1 लाख 2024 टू 2025, जर्नी इज टू 1 लाख टू 10 लाख। ठीक है, फिर 2025 टू 2026, जर्नी इज टू 10 lakhs टू 1 CR। ये जर्नी है, दिस इज द जर्नी विच वी हैव टू कंप्लीट। ठीक है, 1 CR, वंस यू, आपको लगता होगा सपना है, नहीं है सपना यार, इट इज नॉट अ सपना। हाँ, अब आपने सारा जीना मरना यहीं से डिसाइड किया हुआ है कि भाई 1 लाख रुपए ही हैं, इसी से आई हैव टू अर्न, इसी से आई हैव टू गिव द EMI, इसी से आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रेंट, इसी से आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस। कभी नहीं बनेगा ये 1 लाख 1 CR, कभी नहीं बनेगा। भूल जाओ, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, होगा ही नहीं। बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस आर टू बिग फ्रॉम द इनिशियल फेज। आपको इसके लिए एक अलग से स्टेबल इनकम चाहिए ही चाहिए। यू नीड एन स्टेबल इनकम, कि हाँ मेरे को कहीं से महीने का 15,000 रुपए आ जाए, 10,000 रुपए आ जाए, कि मेरा महीने का जो रेंट है या फिर खाने पीने का राशन का सामान है वो वहां से मैनेज हो जाए। फिर आप स्ट्रेस फ्री, ट्रेडिंग इज ए स्ट्रेस फ्री जॉब। अगर आप स्ट्रेस लेकर ट्रेडिंग करोगे, आप कभी भी 1 लाख से 1 CR की जर्नी नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है, आप 1 लाख से जब ट्रेड कर रहे हो, आप सिर्फ दो ही चीज फोकस लेके चल रहे हो, कि मेरे को ऑन एन एवरेज डेली अगर 2-3% का रिटर्न निकाल रहा हूँ, 15 दिन का ये कितना होगा, मैंने 20 दिन का ये 60% होता है 3% के हिसाब से, और 5 दिन इसमें लॉस कर लिया, 45% का प्रॉफिट मैं हर महीने निकाल रहा हूँ। तो 1 लाख का अगर मैंने 45,000 रुपीज, 40,000 रुपीज प्रॉफिट निकाला, सिंपल 1,20,000 मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा, और बाकी का 20,000 जो बचेगा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन विल बी माई SIP, ETF जो भी है, एंड सेकंड विल बी बाई इमरजेंसी फंड। सिंपल है भाई। ठीक है, तो 10,000 यहाँ रखूंगा, 10,000 यहाँ रखूंगा। ये इमरजेंसी फंड आप जब चाहो जहां चाहो यूज करो, ये आपकी मर्जी है। इसको मत छुओ, SIP को मत छुओ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग SIP में दिखेगा 2 to 3 years के बाद। ठीक है, इट विल स्टार्ट शोइंग इट्स मैजिक। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मार्केट से ज्यादा रिटर्न आपको SIP देके जा रहा होगा। ठीक है, सेकेंड मंथ आप 1,20,000 से स्टार्ट हुए, अब 1,20,000 को फिर आप इसका आप 40% निकाल दो, 4,80,000 हो गया, 48,000 हो गया ना, 40, 48,000 इंटू आपका ये कितना,
और 40 या सब कैलकुलेट करके हमने निकाला है ना, तो 1,20,48,000 हो गया, तो 1,68,000 हो गया आपका थर्ड मंथ में। अब आप कैपिटल ट्रेड कर रहे हो 1 पॉइंट, आपकी मर्जी है। अब आपने पहले मंथ में 10-20,000 निकाला था, सेकंड मंथ में 40,000 निकाल दो इसमें से। ठीक है, तो आपका अब ये कैपिटल कितना हो गया, 1,68,000 इधर है, 20,000 इधर है आपके पास, तो 1,88,000। अब आप यहाँ पे चाहते हो तो 1.40 से ट्रेड करो। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो आगे, फिर फोर्थ मंथ में इसको लेके जाओ, फिर फिफ्थ मंथ में इसको लेके जाओ। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मैं 1 लाख रुपीज से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इस चीज को इसीलिए इस बार लास्ट टाइम आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिकेटर्स जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो अगले 20-25 दिन हम लोग बस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में चार्ट पे जाके उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। बस यही चल रहा होगा खाली, तो ये सारी चीजें वहां डिस्कस करने को नहीं आएंगी। तो एक फाइनल टाइम में आपको ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ भाई, सपना नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। जो आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू डेविएट यू, हु आर ट्राइंग टू मेक यू, अरे भाई मत देख मुंगरी लाल के हसीन सपने। हम गरीब लोग हैं, गरीब ही जी आए थे, गरीब ही जाएंगे। हम मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास में ही जिए थे, मिडिल क्लास में ही जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई, वाई? वी नो द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिंग, हमें पता है ट्रेडिंग का क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है, ये क्या कर सकता है मेरे लिए। कैलकुलेशंस झूठ नहीं बोलते ना, कैलकुलेशंस आर नॉट रॉन्ग। क्यों जाएंगे? और मैं जो ये आपको गिव अवे हर महीने देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका एक रीजन ये भी है, क्योंकि इंडियन मार्केट में 20 नवंबर के बाद चीजें बदल जाएंगी। अब एक लॉट 45 का हो जाएगा, अब कहाँ पहले 15 का होता था। तो आपका रिस्क पैसा थोड़ा होना चाहिए आपके पास, तभी आप ट्रेड कर पाओगे ना। तो पहले से जो आपके पास अच्छे फंड्स हैं जो हैं, उसको एक जगह पे सेफ रख दो कहीं पे, ठीक है, कि वहां से आपको हर महीने आराम से 10-15% का रिटर्न आ रहा है। उससे आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, चलो मेरे को वहां से 15,000 20,000 का महीना आ रहा है, वहां से मेरा एक्सपेंसेस का टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आप ट्रेडिंग के लिए पैसा लेके आए हो, उस ट्रेडिंग के पैसे से सिर्फ 20,000 मेरे को अगर कहीं से आ रहा है मंथली, तो मेरे को अगर 10,000 ही यहां से निकालना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। अगर मैं 40,000 रुपये हर महीने कमा रहा हूं यहाँ पे, और 10,000 ही तो मेरे को एक्स्ट्रा निकालना पड़ा, 20,000 अगर कहीं से आ रहा है तो 30,000 रुपये हो गए ना मेरे पास। 30,000 में मेरा रेंट हो जाएगा, मेरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ 30,000 बच रहा है, चलो मैं पहले महीने 10 ही हजार रुपये निकालूंगा, बाकी मैं यहाँ पे 1,30,000 से ट्रेड, क्योंकि जितना बड़ा हम कैपिटल लेंगे, हमारा मार्जिन और हमारा जो प्रॉफिट है वो उतना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, टाइम तो दो। ठीक है, गिव इट एटलीस्ट 6 मंथ्स दो ना इसको, आप देखो ना, आपके 1 लाख रुपीज 6 मंथ के अंदर अगर 4 to 5 lakhs पहुंच गए, तो मेरे को बोलना कि मैंने आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए। ठीक है, लेकिन वही है ना, लोग टिक नहीं पाते उस चीज पे। ठीक है, लोग रह नहीं पाते उस चीज पे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ, मेरे साथ भी होगा। ठीक है, हर किसी के साथ ये चीज होती है। ठीक है, लोग उस चीज पे रह नहीं पाते, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस लाइफ में, कि डेडिड आप बचपन से इस चीज को देख रहे होंगे यार, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। समझ रहे हो आप? भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर कोई बना रहा है, कोई आपको बनने में हेल्प कर रहा है, तो उसको मानिए। ठीक है, ट्राई टू बी इन दैट जोन एंड गेम। भटकाने वाला आपके पास बहुत है, और आपको बनाने वाला बहुत कम है। तो इफ यू आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ एनीवन टू मेक योर सेल्फ, तो बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्राई टू मेक योर सेल्फ, बनने की कोशिश कीजिए, वो बहुत जरूरी है। इट इज रियली गोइंग टू चेंज योर गेम फॉर द नेक्स्ट लेवल, ये आपका गेम एकदम अलग लेवल पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्दर आपको इसमें काम करना है। ठीक है, तो 2-3 महीने आपको स्टॉप लॉस देने में दर्द होगा, यू विल फील द पेन ऑफ गिविंग द स्टॉप लॉस, बट उसके बाद योर पेन विल स्टार्ट गेटिंग इवेपोरेटेड। आपका जो पेन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक बार आपने, क्योंकि आपको पता है मैं मार्केट को अगर 15 दिन 5 दिन स्टॉप लॉस दे रहा हूं, तो 15 दिन उसका दोगुना लेके जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। नॉर्मल कैलकुलेशन है, अभी तो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना अक्टूबर में, जर्नी आपने 1 अक्टूबर से स्टार्ट की है। ठीक है, हमने 3 या 4 दिन मुश्किल से ट्रेड किया, पूरा अक्टूबर बस ट्रेड करो चुपचाप। मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो होगा। ठीक है, आप पूरा अक्टूबर ट्रेड करो। आपका कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, मेरा कैलकुलेशन 4% कहता है मुझे। तो 20 का 4% होता है 80, और 5 दिन इसका लॉस होगा 4%, मतलब 20, इसको माइनस करूंगा तो हो गया ये 60। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपीज से
एक महीने में 60K बनाऊंगा, 60K नहीं भी बनेगा मैं 50K बनाऊंगा, और ये बनना है। ऐसा ऐसा मौका आएगा मार्केट में, आप 20 ट्रेडिंग सेशन लेके जा रहे हो ना, 5 ट्रेडिंग सेशन चलो आपने एसल मान लिया है, 15 ट्रेडिंग सेशन जो बच रहा है ना, इसमें से 5 होगा रेंज बाउंड, 5 होगा ट्रेंडी, और 5 होगा वोलेटाइल। जब रेंज बाउंड होगा इसमें 50 पॉइंट मल्ट कर दो ऑन एन एवरेज, यहाँ से आपके 250 पॉइंट निकलेंगे। यहाँ से जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो 100 से 150 पॉइंट निकलेंगे आपके 5 दिन में। ठीक है, और जब आपका मार्केट रेंज बाउंड, जब आपका मार्केट वोलाटाइल होगा, तो आपका पॉइंट जो है 50 से 50 to 70 पॉइंट पॉइंट आराम से निकलेगा, ये निकलना ही है। ठीक है, योर गेम इज गोइंग टू बी, आपका गेम अलग लेवल पे होगा, बट वही है ना, ये बिलीफ मुझे नहीं देना, मुझे, मैं आपको कितना बिलीव दिलाऊंगा। ठीक है, बचपन से माँ बाप आपको बिलीव दिलाते रहे ना, योर पेरेंट्स हैव बीन कीप प्रेशर, कीप बिलीविंग यू, टेलिंग यू डैट बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा सब कुछ होगा। जो मान गए, अच्छे से पढ़ गए, आईआईटी एनआईटी पहुंच गए, मेडिकल कर लिया, वो अच्छे से लाइफ सेट है उनकी। जो नहीं मान पाए, जो इधर उधर घूमते रह गए, यहाँ वहां रह गए, आज बस भटक रहे हैं। तो पेरेंट्स ने आपको बिलीव दिया, आप उस बिलीफ को कैरी नहीं कर पाए, तो आपका नुकसान हुआ। आज मैं आपको बिलीव दे रहा हूं, आप उस बिलीव को कैरी नहीं कर पा रहे हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, किसी किसी चीज में, छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। ठीक है, अपने जो आपकी जो रियल पोटेंशियल है, जो आपका रियल मतलब स्टेमिना है, जो आप कर सकते हो इस दुनिया में, उस चीज पे आपको खुद सेल्फ डाउट है। अगर इफ यू आर इन योर ओन सेल्फ डाउट, तो मैं कितना भी आपको सेल्फ बिलीव दे दूं, वो ढाक के 3 पात बनेगा, फिर जहां आपकी कहानी है फिर वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं बना सकता मैं यार 1 लाख से 1 करोड़, क्यों नहीं बना सकता? मैं क्यों नहीं बना सकता? वाई आई कैन नॉट मेक 1 लाख रुपीज 1 ईयर? क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? क्यों नहीं बन सकता? ये बनता है यार, दुनिया बनाती है, मैं भी बना सकता हूँ। बस मुझे अपने सारे जो रिस्क हैं, जो भी मैंने, जो ये इतने सारे जो दायित्व फैला रखे हैं अपनी जिंदगी में, इतने सारे जो मैंने जो पास्ट के 3 4 5 सालों का जो अब भाई, जो गलतियां पिछले 3 4 साल 5 सालों में आपसे हुई हैं, आप चाहोगे एक ही महीने में ये सारा का सारा गलती खत्म हो जाए? ऐसा थोड़ी होता है। आप खाना खाते जाओगे, दबा के खाओगे, खूब सारा नॉनवेज वेज सब कुछ खाओगे, और आपका वेट होना चाहिए 75 kg, आपने उसको कर लिया 100 kg। आप चाहते हो ये 100 kg एक ही दिन में 75 पहुंच जाए? ऐसा थोड़ी होता है। 4 5 साल जो आपने गलतियां की हैं, जो आपने बैड डिसीजंस लिए हैं अपने आप में, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी तरीके से, आप चाहते हो एक ही महीने में, 2 ही महीने में कोई आए जादू की छड़ी घुमाए और सब ये खत्म हो जाए? ऐसा थोड़ी होता है यार। 5 साल की गलती है तो 2 साल तो देने पड़ेंगे इसकी भरपाई के लिए, गलती आपने की है ना, मिस्टेक्स आपके हैं, तो दो एटलीस्ट 1.5 ईयर 2 ईयर तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब आप चाहते हो मिस्टेक्स भी कर लूं, वहां से जो गलती हुई है उसकी कोई आगे भरपाई भी करा दे, और भरपाई कराने के साथ साथ मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट भी हो जाए, और मैं अपना जो जो लाइफ है, आजकल तो सबका यही जो जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है भाई, सबको आईफोन चाहिए, सबको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, सबको भाई मतलब स्ट्रगल नहीं करना, इजी मनी चाहिए। ठीक है, किसी को स्ट्रगल नहीं करना, सबको इजी मनी चाहिए। ठीक है, सबको फ्लाइट में ट्रेवल करना है। ठीक है, सबको ट्रिप्स पे घूमने जाना है, सबको मूवीज मूवीज देखनी है आईमैक्स में, पीवीआर में जाके। तो अगर आपने 3 4 5 ईयर्स अपनी जिंदगी में बैड चीजें ली हैं, और दुनिया में क्या नहीं होता है भाई, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, इसी जिंदगी में सारे हिसाब किताब करके जाने हैं आपको। आपने अगर 5 ईयर्स अपनी जिंदगी को वेस्ट किया है बैड डिसीजंस के थ्रू, तो आपको इसका एटलीस्ट 2 ईयर्स तो आपको देना पड़ेगा इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। 2 साल लगेंगे तब जाके ये सारी चीजें आपको सही होती हुई दिखाई देंगी। और उस 2 साल जो आप, अगर आपने 5 ईयर्स अपनी लाइफ में खूब सारा इंजॉयमेंट किया है, खूब सारा वो सारी चीजें की हैं, और लाइफस्टाइल आपने अलग लेवल पे ईएमआई लेके, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेके आपने लाइफस्टाइल को बढ़ा, खूब सारा बढ़ा दिया आपने, और अब वो आपको अगर बैक फायर कर रहा है, तो आपको इन सारे जो आपके जो लाइफस्टाइल है उसको भाई, अगर आप अभी 100% लाइफस्टाइल पे जीते हो, और आपको ये आपके सारे जो फाइनेंसेस हैं वो बैक फायर कर रहे हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल 50% पे लेके आनी पड़ेगी। आप नहीं लेके आओगे, आपकी कहानी खत्म है। फिर वही मन में सुसाइड थॉट्स, ये थॉट्स वो थॉट्स, ऐसे थॉट्स वैसे थॉट्स आपके आते रहेंगे। ठीक है, एक जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी में सारे काम करने हैं, तो यू नीड टू बी बोल्ड। अगर आपके पास्ट में आपके मिस्टेक्स की वजह से आप आज किसी एक खराब स्टेज पे हो, वहां से निकलना भी कोई नहीं आएगा निकालने। ठीक है, वहां से निकलना भी आपको है, तो योर सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपका जो ये सेल्फ बिलीफ है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको निकालेगा। ठीक है, योर सेल्फ बिलीफ इज गोइंग टू पुल यू आउट फ्रॉम द डिजास्टर्स। ठीक है, लोग एक एक दो दो लाख करोड़ के लॉस निकाल लेते हैं यार। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में पांच, कितना लॉस होगा? 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इतना ही लॉस होगा ना। कोई बात नहीं है, यू नो द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ मार्केट। ठीक है, जो गलती हुई है उसको ठीक करो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से जर्नी स्टार्ट करो। 2-3 साल तुम ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनोगे, 100 रुपए का टी शर्ट पहनोगे, 200 का पैंट पहनोगे। 2-3 साल तुम 800 रुपए का चावल नहीं खाओगे, 100 रुपए का चावल खाओगे। 2-3 साल तुम 1000 रुपए केजी मटन नहीं खाओगे, तुम 100-200 रुपए केजी चिकन ही खाओगे। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? बट इन 2-3 years योर इंटायर लाइफ इज गोइंग टू चेंज ना। आपका नेक्स्ट, मैंने बोला है ना कि नेक्स्ट 2 years योर टारगेट शुड बी कि आप जो भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो CAGR के हिसाब से, आप एटलीस्ट आफ्टर 2 years आप डेप्ट फ्री हो जाओ हर चीज से। एक सिंपल जिंदगी जीने का सबसे अच्छा, मैं वो आपको एक वो बोलता हूँ, कभी भी क्रेडिट पे जिंदगी मत जियो। आप देखोगे मेरे पास, कभी आप मुझसे मिलने आओगे, मेरे पास आपको कभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। मैंने कभी ये यूज किया ही नहीं। मेरा सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा सिद्धांत है। मेरे पास मेरे अपने पैसे होंगे, मैं खर्च करूंगा, नहीं होंगे नहीं करूंगा। अगर मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, ये मेरे एक्सपेंसेज है, तो मैं इसके हिसाब से खर्च करूंगा। मैं 20 लाख उधारी लेके खर्च नहीं करूंगा। नो, दैट थिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ये आप अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लो। इफ यू आर यंग, इफ योर एज इज 20, 21, 22, और आप ये बात अगर सुन रहे हो, प्लीज कीप द, जिंदगी में कभी भी क्रेडिट पे जिंदगी को मत जियो। डोंट ट्राई टू लीव योर लाइफ ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑलवेज लीव योर लाइफ इन डेबिट, हमेशा डेबिट पे जियो। अपने पैसे हैं, खर्च करूंगा। मेरे खुद के पैसे होंगे, खर्च करूंगा, नहीं होंगे नहीं करूंगा। ये कौन सा कल्चर है भाई कि पर्सनल लोन लेके हम वेनिस और फ्रांस घूमने जा रहे हैं, और 12 महीने बैठ के, 5 साल बैठ के फिर उसकी EMI चुका रहे हैं? ये कौन सा कल्चर है? ये क्या है? मुझे तो नहीं समझ आता ये चीजें। ठीक है, तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। मैं कितना भी कुछ कर दूं, ठीक है, आपके अंदर अगर आपका सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आप इतने निगेटिव हो चुके हो अपने अंदर, इतने ज्यादा आप टूट चुके हो, इतने ज्यादा आप अंदर से भरे हुए हो कि आपको कोई पॉजिटिव चीज भी दिखाता है तो हर 2 दिन 3 दिन के बाद आपको वो फिर निगेटिव दिखाई देने लगती है। क्योंकि आपके आसपास आपकी दुनिया इतनी निगेटिव है कि कोई पॉजिटिव चीज आपको वहां से सेल्फ बिलीफ दिला ही नहीं पा रही कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। और आपके सरकमस्टांसेज, आपने अपने फाइनेंशियल्स, आपके जो पास्ट लाइफ के जो मिस्टेक्स हैं, प्रॉपर स्टडी हो या कुछ भी हो, प्रॉपर करियर हो, आपने उसको इस तरीके से नेग्लेक्ट किया है कि आज आपके वो प्रेजेंट लाइफ में आपको, अगर आप चाह भी रहे हो कि मैं यहाँ सबसे निकल के एक अच्छी जिंदगी जीऊं, वो आपको निकलने नहीं दे रहा। तो फाइट मैं थोड़ी, रवि रंजन आके थोड़ी करेगा। फाइट तो आपको ही करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइट फ्रॉम इट। ठीक है, इंसान से बढ़ के पैसा नहीं है, इंसान से बढ़ के 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए नहीं है। ठीक है, ये आते जाते रहेंगे। आप इंसान हो, ये सबसे बड़ी चीज है। द ह्यूमन, यू आर एन ह्यूमन। ठीक है, आप ही सब निकाल दोगे, आप ही करोगे। ठीक है, तो इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर गेटिंग इन योर लाइफ समथिंग दैट इज गिविंग यू सेल्फ बिलीफ कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो उसको पॉजिटिव वे में लेके जाओ, पॉजिटिव सोचो। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतने पॉजिटिव लोग आपको मिलेंगे और उतनी पॉजिटिव चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। निगेटिव सोचोगे, उतनी ही निगेटिव चीजें आपके साथ होंगी। जो भी बैड एलिमेंट्स आपकी लाइफ में है, जो भी निगेटिव चीजें आप करते हो, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली कुछ भी हो, उन सब से दूर रहिए। ठीक है, देन पॉजिटिवली यू आर गोइंग टू ग्रो इन योर लाइफ, तभी आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है ना। और सेल्फ बिलीफ डालिए अपने अंदर। यू नीड टू, भाई सिंपल है। अगर 2-3 साल आप जॉब में आए, नए नए जॉब में आते हैं आप, है ना, स्टार्टिंग में 25-30 हजार, 40 हजार की जॉब लग जाती है, कोई क्रेडिट प्रोफाइल होता नहीं है, आपकी सैलरी आती है। आजकल बैंक वालों को तो चप्पल से मारना चाहिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोफाइल बनी, 3 महीने की सैलरी आई, आपको सीधा आपकी सैलरी का 3 टाइम्स 5 टाइम्स लोन के लिए एलिजिबल बना देते हैं। ट्रैप, अ बिग ट्रैप। आपको लगता है, एक मिडिल क्लास फैमिली, बचपन से मेरे घर में, आज मैं
जब मैंने दुनिया घूमी है, लोगों को देखा है, अपने फाइनेंसेस संभाला हूं, तब मुझे समझ आता है कि हमारी फैमिली मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हमारे मामा मम्मी पापा के लिए क्या था, उनके सपने क्या थे। उनका सपना था कि हमारे बच्चे, आवर किड्स, वो अच्छे से पढ़ लिख जाएं। ठीक है, थोड़ा सा कहीं पे एसेट हो जाए, एसेट के नाम पे थोड़ा गोल्ड हो, थोड़ा घर हो जाए, कहीं पे जमीन हो जाए, थोड़े अच्छे से सेविंग हो जाए। ठीक है, और बस यही लाइफ है उनके लिए। उनके लिए यही लाइफ थी। ठीक है, दोष उनका नहीं है, सोसाइटी जो जनरेशन था उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सही सोचा। आज की जनरेशन के लिए क्या है? जो आज है, खाओ पियो खर्च करो और उसी को खत्म करो, आगे के लिए कुछ मत रखो। ठीक है, आज की जनरेशन क्रेडिट पे जिंदगी जीना पसंद करती है, हर चीज बहुत फास्ट तरीके से चाहिए, बहुत फास्ट, अल्ट्रा फास्ट। 30,000 की सैलरी है, लेकिन फोन 1.5 लाख का जरूर रखेंगे। अब पे करेंगे 12 महीने उसकी ईएमआई, लेकिन रखेंगे जरूर। ये किस लिए है भाई? ये किस लिए? वाई वाई दिस शो ऑफ, क्यों? किस लिए? वाई? बन जाओ ना उस लाइक, फिर करो। है ना? तब 30,000 की सैलरी है, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड एलिजिबल है सर, ले लो 4 क्रेडिट कार्ड, क्या जाता है, 4 लाख खर्च कर देंगे अकाउंट से, फिर काटते रहेंगे, 55 दिन में 55,000 रास्ते निकल जाते हैं, है ना, वो जन्नत मूवी का डायलॉग। चलो, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे 55,000 रास्ते। वो 55,000 रास्ते निकलते नहीं है, 55,000 गलतियां आपसे जरूर हो जाती हैं फिर उसके बाद। और आप बस एक फाइनेंशियल डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो। ठीक है, तो निकालना आपने अपने आप को खुद है। द फाइट फॉर दिस द इज योर सेल्फ बिलीफ। ठीक है, योर 3-5 years मिस्टेक्स विच यू हैव डन, विच विच हैव मेड यू टू कम इन दिस पोजिशन। हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी में हमने एक बहुत अच्छा उपाय ढूंढ रखा है, ब्लेम करने का। ठीक है, सामने वाले पे ब्लेम डाल दो। तुमने अच्छा नहीं किया इसलिए मेरी जिंदगी में ये हो गया, तुमने ये काम नहीं किया इसलिए मेरी जिंदगी में ये हो गया। सेल्फ ब्लेम डाल दो बस। हम यही करते हैं, और क्या करते हैं? ठीक है, और सेल्फ वो ब्लेम डालने की जो आदत है, उससे हम अपने आप सोचते हैं चलो हमने कोई गलती नहीं की, मैं तो सही हूँ पूरा। ठीक है, आप सोचिए आपने अपनी जिंदगी में पिछले 4-5 सालों में क्या क्या गलती की है, जो आप आज इस पोजीशन पे यहाँ बैठे हुए हो, कि आज आप 30-30, 40 हजार, 50-50 हजार रुपए महीने का कमाने के लिए भी आपके लाले पड़े हुए हैं। कहीं तो गलती हुई है ना आपसे। इधर आपने अपनी डिग्री सही से नहीं लिया, इधर आपने अपनी पढ़ाई सही से नहीं किया, इधर आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, इधर आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही से नहीं लिए। आपकी क्रेडिट की जिंदगी, आपकी हैसियत थी 20 हजार 25 हजार रुपए में लाइफस्टाइल जीने की, आप उसको 1 लाख रुपए की जिंदगी में जी रहे थे, वो भी क्रेडिट पे। तो ये तो आपको बर्बाद करेगा ही ना। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, सुधार लो अपने आप को, क्रेडिट की जिंदगी मत जियो, डेबिट की जिंदगी जियो। सबसे पहले तो इस नियम को अपने जिंदगी में बसा लो। ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं, जो भी कर्ज हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उन सबको समेटो धीरे धीरे। ट्राई टू फाइट फॉर इट। ठीक है, और मार्केट में अगर बैठे हो, मैं आज भी बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर कट बोलूंगा, दर्द होगा आपको, चुभेगा भी, इट इज गोइंग टू हर्ट यू वेरी बैडली। इन द मार्केट इफ यू आर ट्रेडिंग, कि मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, और यहीं से मैं अपनी ईएमआई भी भरूंगा, अपने पेरेंट्स के एक्सपेंसेस का भी मेंटेन करूंगा, अपने मंथली एक्सपेंसेस भी निकालूंगा, सेविंग भी निकालूंगा, है ना, और भी फलाना ढिमकाना जो शौक हैं सारे यहीं से पूरे करूंगा। आप 1 लाख रुपए 100 बार डालोगे, वो 100 बार जीरो होगा। लिख के दे रहा हूं मैं, मेरे से लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे, वो जीरो होगा। इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। ठीक है, ट्रेडिंग में वही कामयाब हो सकता है जो 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर एटलीस्ट ये सारे एक्सपेंसेस का 70% 80% इज टेकन केयर ऑफ फ्रॉम समवेयर एल्स। तो वो एसेट आपको रेडी करना पड़ेगा। दैट फॉर दैट एसेट हेल्प ओनली आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। ठीक है, जिसके लिए मैंने आज शाम में आपके साथ वो मीटिंग रखी है। ठीक है, दैट हेल्प यू विल हैव टू जनरेट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, वो एसेट आपको रेडी करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में पीसफुली, पीस माइंड के साथ ट्रेड कर पाओगे। आपके लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, शाम को कॉल आता है, सर योर क्रेडिट कार्ड बिल इज पेंडिंग, इन दिस मंथ योर फाइनल आउटस्टैंडिंग इज 55,000। अरे आप सोचते हो, "ओ भाई साहब, 55,000 रुपये पे करना, चल मार्केट से निकाल लूंगा फिर पे करूंगा।" बस वहीं पे आप खत्म, आपकी कहानी खत्म, जहां आपने एक्सपेक्टेशन डाला मार्केट से, क्योंकि अब आपके दिमाग में घूम रहा है 55,000 रुपीज। ये टारगेट आपने सेट कर दिया है इस 1 लाख रुपए के लिए ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये तो आपको रुइन कर देगा, ये तो आपको बर्बाद कर देगा, दिस इज गोइंग टू रुइन यू कंप्लीटली। ठीक है, तो सबसे पहले
जब आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं, इन सारे एक्सपेंसेस का बैकअप ढूंढिए। जब तक बैकअप नहीं ढूंढ रहे हैं, तब तक रिस्क माइंड फ्री होके आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी दिमाग में बिठा लीजिए। सेकंड, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स या पूरी जिंदगी, आज आप 40 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, 25 ईयर्स के हैं, जो भी हैं, आई डोंट केयर। आप अपने दिमाग में बस ये बिठा लीजिए कि मैं अब से क्रेडिट की जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं क्रेडिट की जिंदगी नहीं जीऊंगा या नहीं जीऊंगी। मैं डेबिट की जिंदगी जीऊंगा या जीऊंगी। मेरे पास पैसे होंगे, मैं खर्च करूंगा। मेरे पास नहीं होंगे, मैं नहीं करूंगा। और हैं भी तो मैं उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करूंगा। और अपने लिए माइलस्टोन लीजिए कि मेरे पास मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इन सब को, मुझे जो भी झेलना पड़े, जो भी फाइट करना पड़े, जो भी हो, मैं सब करते हुए विद इन 2 to 3 ईयर्स अपने सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करूंगा। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है मेरा, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं उसको जीरो करूंगा या जीरो करूंगी। दैट्स इट। एक बार आपने ये कर दिया, आप सोचो ना, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आज आपको ट्रेडिंग में जितना नॉलेज है, या जितना आप प्राइस एक्शन समझ पाते हो, या जितना आप मार्केट को समझ पाते हो, अगर आपके ऊपर ये फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं होते, ये बैरियर्स नहीं होते, ये ईएमआई का जाल नहीं होता, ये इतने सारी चीजें नहीं होती, आप सपोज करो कल से आपके ऊपर जीरो डेप्ट है। आपके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, जीरो डेप्ट है, कोई आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है कि मंथली इतना देना है, ये करना है, वो करना है। आप कितना मेंटल फ्री होकर ट्रेड करोगे। आपको अगर 1 लाख रुपए से डेली का 2,000 रुपए भी बनेगा ना, यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। आज ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए का 5,000 भी बन रहा है तो आपको खुशी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने सारे स्ट्रेस पाल रखे हैं आपने अपने सर पे, है ना। तो ट्रेडिंग से अगर 1 लाख रुपए से, अगर आपको, जब आप डेप्ट फ्री रहोगे, रिस्क फ्री रहोगे, जीरो जीरो डेप्ट होगा, अगर डेली के 2,000 3,000 भी बनेंगे ना, आप बहुत खुश होगे उतने पे। क्योंकि यू हैव नोथिंग टू शेयर। ये पैसा सिर्फ आपका है। यू हैव टू गिव यू इन नो नो वन। आपको किसी को कुछ देना नहीं है इसमें से। ठीक है। तो मैं तो बस हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रे कर रहा हूँ कि भगवान मुझे आप जिंदा रखो। मैंने अपने लिए बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब चल जाएगा मेरा। कुछ कर लूं मैं, कुछ 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 हेल्प कर पाऊं किसी की, कितनी जितने अच्छे से हो सके। तो आई एम देयर। अब आपके अंदर भाई, मैं हर 10 दिन पे ये बैठ के इतना लेक्चर नहीं दे सकता ना, ये लेक्चर ही है मेरे लिए। मैं इतना ज्ञान आपको नहीं दे सकता। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ बिलीफ लानी पड़ेगी। अब हर दिन में आप पंक्चर हो जाओगे, और मेरे को ये मोटिवेशन नाम का जो ये हवा है, ये आपके अंदर हमेशा फुल फिल करना पड़ेगा, वो टायर प्रेशर वाली मशीन से। तो ये तो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ना। क्यों? बच्चे थोड़ी हो आप। द डेथ रियलिटी इज दैट यू हैव टू गो फ्रॉम दिस लाइफ, एंड व्हेन यू आर गॉन, नो वन इज गोइंग टू रिमेम्बर यू। तो आपने जो भी रायता फैलाया है, लास्ट में जब आप अपनी जिंदगी के लास्ट कुछ सेकंड्स जी रहे होगे, तो आपकी जिंदगी का एक सबकॉन्शियस माइंड होगा, जो ऑलमोस्ट 10 to 11 मिनट्स की पूरी मूवी दिखाएगा आपको। आपको ये अगर बेकार लगता होगा, दिस इज द रियलिटी। उस पूरी मूवी में आप अपनी माँ के पेट में जब आप थे, वहां से जब आप निकले, और वहां से लेके आज तक आपने जो भी किया, वो पूरी मूवी आपके सामने चलेगी। ठीक है। भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु आपको, जीसस वहां आपको वो मूवी दिखाएंगे। ठीक है, कि देखो तुम्हारे ये कर्म थे इस धरती पे, तुमने ये सारे काम किए हैं। ठीक है, वो पूरी मूवी चलेगी वहां पे। और उस मूवी के बाद आपकी रेनबो जर्नी स्टार्ट होगी। रेनबो ब्रिज के उस पार आप पहुंचोगे, जो आफ्टर डेथ जो डिफरेंट वर्ल्ड है, जहां से आप निकलते हैं, दैट ब्रिज इज कॉल्ड रेनबो ब्रिज। आप उस पार पहुंचोगे। वहां क्या है कि क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है। द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड इज दैट यू आर गोइंग टू डाई वन डे। दिस इज गोइंग टू हैपन। नो वन विल एवर केयर कि कोई इस नाम का बंदा यहाँ एग्जिस्ट करता भी था। आज आप जिस घर में रहते हो, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, वहां कोई और फैमिली रह रही होगी, वहां कोई और लोग रह रहे होंगे। आज आप जिस गाड़ी पे चढ़ते हो, 10 साल के बाद वो कहीं किसी स्क्रैप यार्ड में जंग खा रही होगी। आज आप जिस चीज पे इतना अहंकार करते हो, कल को वो चीज वहां होगी ही नहीं। दिस इज द रियल, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। तो प्लीज अपनी अपने अपने लिमिट्स को पहचानिए। अपने जो सेल्फ कैपेबिलिटी है, उसको पहचानिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कैपेबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियसली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज गोइंग टू पे यू इन अ वेरी बिग मैनर। ठीक है। तो प्लीज अपनी लिमिट्स को पहचानिए। आप अपनी लिमिट्स को नहीं पहचान पाएंगे, आप अपनी जिंदगी में नहीं कुछ कर पाएंगे।
ठीक है, अगर आपने अपने लिए अपनी प्रॉब्लम्स इतनी सारी खड़ी की हैं एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस, देन यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। नो वन इज गोइंग टू कम हियर एंड फाइट फॉर यू। आपके लिए कोई यहाँ आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपको ही लड़ना है। जिंदगी का पता नहीं है, आज बोलते बोलते अभी 2 घंटे के बाद मैं ना रहूं इस दुनिया में। एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन, मैं या आप किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉट एवर द लाइफ दैट इज गिवन टू अस, बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड उसके हिसाब से आपने जो भी अपनी जिंदगी, अरे हर कोई इंसान, मुझे नहीं पता मेरे मरने का डेट, मुझे जो मरना है जिस दिन, डाई आई हैव टू डाई, दैट डेट आई डोंट नो विच डे इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, तो जब तक ये नहीं पता तो नहीं पता, आई विल फाइट। मैं फाइट करूंगा, लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी, कहाँ लेके जाएगा ये मुझे। आई विल फाइट फॉर माई सेल्फ। इंसान ही बनता है ना। आज जीरोधा नितिन कामत इज सिटिंग एट एनुअल टर्न ओवर ऑफ 4800 CR। पीछे की जर्नी पर हो जाके क्या करता था, एक इंसान ही है ना। 15 साल 10 साल में 15 साल में कोई इंसान 5,000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट निकाल रहा है ना, इंसान ही निकाल रहा है ना। उसके अंदर कोई मतलब क्या इलोन मस्क का अलग से वो न्यूरल लिंक थोड़ी फिट हुआ पड़ा है। या उसके अंदर कुछ भगवान ने अलग नेक्स्ट लेवल का IQ तो देके नहीं भेजा हुआ है। वो भी इंसान है, वो भी आपकी तरह सुबह में ब्रश करता है, वो भी आपकी तरह सुबह में वॉशरूम जाता है, खाना खाता है, वो भी आपकी तरह घूमता है, वो उसके भी थॉट्स वैसे ही हैं। तो क्यों इतना फर्क है? फर्क इसलिए है क्योंकि सेल्फ बिलीफ का अंतर है, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का अंतर है, क्रेडिट और डेबिट लाइफ का अंतर है। ठीक है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू ऑल, मतलब वार्निंग इन द सेंस कि आपकी जिंदगी की वार्निंग मैं आपको समझा रहा हूँ। टेक इट सीरियसली। ठीक है, और अपने हिसाब से फर्स्ट काम ये कीजिए, जो भी आप ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को हर हाल में विद इन 6 मंथ जीरो कर दीजिए, जीरो। फिर फ्री माइंड से ट्रेड कीजिए अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो। इन नेक्स्ट 6 मंथ्स कीप द टारगेट कि मैं किसी तरीके से, चाहे जो भी हो, जहां से भी हो, जैसे भी करके, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उसको मैं ट्रेडिंग से नहीं निकालूंगा, वो पहले से टेकन केयर ऑफ होंगे। अब हमारे कम्युनिटी के थ्रू होंगे, बाहर से होंगे, कहीं से होंगे, कहाँ से होंगे, वो आपकी मर्जी है, वो आप टेकन केयर ऑफ करेंगे। और उसके बाद फिर फर्दर मैं ट्रेडिंग से सिर्फ जो पैसा कमाऊंगा, आई विल ग्रो इट एज अ वेल्थ। और अगर मेरी जिंदगी अभी डेबिट में चल रही है, मतलब मैं उधार की जिंदगी जी रहा हूं, तो इन नेक्स्ट 2 years और 3 years, वट एवर द लोन आई हैव, वट एवर द थिंग्स आई हैव, आई विल पे इट बैक एंड आई विल मेक इट जीरो। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई लाइफ इन अ फ्री मैनर। ठीक है, ये करना आपको ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही माते पीटते 15 दिन बैंक वालों का कॉल आते, EMI वालों का प्रेशर आते, ये वो करते, जिंदगी कटती रह जाएगी और एक दिन पता चलेगा कि इस नाम का इंसान इज नो मोर, खत्म। ठीक है, अभी जो ये जिगजैग लाइन चल रही है, एक दिन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो थिंक द बिग पिक्चर, ट्राई टू थिंक इन अ बिग मैनर प्लीज, इट्स अ रियल हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन सीरीज कंप्लीट होती है। अब इसके जो टेस्ट्स वगैरह हैं, कैसे क्या होना है, क्या सारी चीजें हैं, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द रियल गेम चेंजर फॉर यू। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ट्रेड लेते कैसे हैं, SL लगाते कैसे हैं, प्राइस ढूंढते कैसे हैं, प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट 1 मंथ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, अब मेरी आरती का टाइम हो गया है, मैं पूजा वगैरह करके फिर इवनिंग में आपके साथ 10 o'clock मिलता हूँ। ओके, नोट्स अपलोड हो जाएंगे, कल तक का टाइम दो, मैं सारे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, एक लिंक बना दिया मैंने ऑलरेडी। लिंक इज देयर, लिंक पे मैंने सारी चीजें वहां पे आपको समझा, वहां पे वो कर दिया। आज मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा, आजकल मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगा, उसी पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए। बाकी जो लोग मेरे कॉल का वेट करें, जैसे हैं वेट कीजिए, कल तक परसों तक सब लोगों को कॉल मैं कर लूंगा। चलिए, प्लीज टेक केयर, लेट्स मीट इन द इवनिंग एट 10, एंड फिर बात करते हैं। ओके, फेस टू फेस बात करेंगे, सब लोग 1 to 1 हमारी डिस्कशन होगी, कॉमन। दैट इज, देखिए एक चीज और समझा दूं, यहाँ पे जो ट्रेनिंग है या यहाँ पे जो हम कुछ कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लाइव ट्रेडिंग ग्रुप इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, दैट इज अ कम्युनिटी। वहां पे आप मेरे साथ जॉब नहीं कर रहे हैं,
वहां पे आप मेरे साथ, मैं आपका बॉस या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। वी आर अ फैमिली। करेंटली वी आर अ फैमिली ऑफ 138 पीपल। और मेरे को इसको 100 लेके जाना है, V100। मेरा नाम ही है, आगे जाके मैं इसका नाम ही कर दूंगा अभी V100। ठीक है, बस 100। हम 100 हैं इस देश में। इस देश के किसी भी कोने से हम 100 लोग हैं बस। अब 100 में 120 125 लोग हैं मुझे नहीं पता, बट We are 100। ठीक है, इन 100 में से हो सकता है 15-20 गद्दार निकलेंगे आगे जाके। ठीक है, उनका दिमाग क्या कहता है, कैसे कहता है, उनकी क्या मजबूरियां रहेंगी, क्या होगा वो मुझे नहीं पता। वट दैट दैट लीव ऑन डेस्टिनी। बट We are 100। तो इस ग्रुप का प्रॉपर, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पे सारे डिस्कशंस होंगे। अब यहाँ पे बैठ के आप व्हाट्सएप में और चैट नहीं डाल रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपर एवरी हेल्दी डिस्कशंस एंड ऑल मेनी थिंग्स विल बी देयर। हर ये 100 एक दूसरे को जानते होंगे। ऑल दीज 100 आर नोइंग ईच अदर इन अ वेरी वेल मैनर। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। चलिए उसके बारे में मैं इवनिंग में बात करूंगा। ओके, लेट्स। 1,000 लोगों को साथ चलने से अच्छा है 100 के साथ चलो, और 100 लोग अपनी अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करो। मैंने तो ये सीख लिया है। ठीक है, और आप अकेले कोई कुछ नहीं फोड़ सकते। अकेले बस का भी ना है फोड़ना। ठीक है, मिलके ही फोड़ सकते हैं। ठीक है, 100 लोग 1 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं। 100 लोग 10 लाख से 10 करोड़ बना सकते हैं। 100 लोग 1 करोड़ से 100 करोड़ बना सकते हैं, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, चलिए हेल्प करेंगे एक दूसरे की आगे उठने और बनने में। चलिए, लेट्स मीट इन द इवनिंग, प्लीज टेक केयर। बाय।